Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Hare Krishna. We will have recite prayer. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utpadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Tirupam Sagrajatam Sagan Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagan Lalita Shri Vishakhanvitamscha Sri Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Thank you so much for attending today's class again. So हम लोगों ने कल जो भी करा थोड़ा बहुत है. Anybody would like to share? कुछ शेयर करना चाहते हो कुछ भी? मे बी अनम्यूट करके कर सकते हो.
Hare Krishna. Yes, Mataji. Hare Krishna. Minti Sharma Mataji. Anybody wants to share something? Questions we can take up towards the हाँ, end. In fact, हाँ, लेकिन कल की क्लास के बारे में अगर कुछ भी. volume is very low. This thing, I think. Mataji, volume is fine here. I think it is. Okay. Maybe. Okay. Now it is clear. Now it is clear. Thank you. Okay. चलो Yes. मैं थोड़ा सा, अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि जैसे हमने कल शुरू Hare Krishna, करा. Prabhu. Hare Hare Krishna. Krishna. Yes, Prabhu ji. Nidhi Mataji wants to say something. Hare Yeah, Krishna. please Mataji. No, मैं volume के लिए I was saying कि volume was very low, but it's fine now. Okay. Thank you. So I'll just give little brief के क्या हमने what we studied yesterday. तो basically question से शुरू होता है, अर्जुना का confusion से शुरू होता है कि मैं क्या करूं, संन्यास लूं या एक्शन करूं. जैसे कृष्णा उसको बोल रहे एक्शन करने के लिए, जब जिस काम के लिए आए हैं तो वो एक्शन करने के लिए आए हैं, मतलब अपने वॉर करने के लिए आए हैं, जो अपने जो भी उनके कजन्स या ब्रदर्स के उनके अगेंस्ट या टीचर सबके अगेंस्ट. तो नाउ ही इज कंफ्यूज. तो फिर वो उसके पास ऑप्शन क्या, विकल्प क्या है. वो कहता है कि मैं या तो संन्यास ले लूं, अगर नहीं करूंगा तो ये संन्यास ले लेता हूं. तो फिर इसमें कृष्णा इसके बाद उनको करते हैं, डिस्करेज करते हैं कि जो प्री मैच्योर रिनंसिएशन है, जो संन्यास है या जो छोड़ के जाना, जब तक आप अच्छे से अंदर से हृदय से पूरे क्लीन नहीं हो, जब तक आप पूरी भक्ति या भगवान में लग नहीं सकते, अच्छे से पूरा 100% सरेंडर नहीं कर सकते, तो तब तक आपको संन्यास नहीं लेना चाहिए. क्योंकि हमने कल भी डिस्कस करा था, जो अर्जुन है वो हमें एज ए रोल मॉडल प्ले कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, ना कि वो खुद तो भगवान के पार्षद हैं, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है. पर वो जैसे होता है कोई भी रोल प्ले या मूवी देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो उसमें एक्टर जो भी काम करता है वैसे वो कर रहे हैं. तो फिर कृष्णा उनको कहते हैं कि आप जब तक क्लियर नहीं हो जाते उसमें, हार्ट मतलब पूरा नहीं हो जाते क्लीन, तो आप तब तक अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करो. लेकिन उसके बाद बताते हैं कि डिटैचमेंट के साथ करो. कैसे करो? तो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज की जब बात करी तो हमने डिस्कस करा क्या प्रिस्क्राइब ड्यूटी कैसे करनी. उसमें हमने वर्णाश्रम धर्म को करा कि उसके थ्रू अगर हम जैसे वर्णास और आश्रम्स को अपने फॉलो करते हैं, प्रॉपर उनको फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो होगी शुद्धि होगी, मन मतलब उसमें होगा. तो फिर उसके बाद कृष्णा जो अर्जुन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हो प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो, वो तो मैं करूंगा, कर लूंगा, चलो. पर प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो करूंगा, तो क्योंकि मैं तो एज ए क्षत्रिय हूँ, तो मैं तो एक सोल्जर हूँ और मैं दूसरा कुछ कर नहीं सकता, दूसरी किसी की ड्यूटी नहीं कर सकता, तो मुझे तो यही करना पड़ेगा, युद्ध ही करना पड़ेगा. तो मेरे से बहुत लोग मर जाएंगे, मेरे से हजारों लोगों को मैं शायद वध कर दूंगा. तो इसमें मुझे क्या हो जाएगा कि मेरे को बॉन्डेज में फंस जाऊंगा, इसमें पाप के चक्कर में, पाप से मैं घिर जाऊंगा. तो फिर कृष्णा उसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं यज्ञ का, जो सेक्रीफाइस करने का कि तरीका बताते हैं कि अगर आप प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते रहो और अपने जो भी इसमें होगे, अगर कोई आपके सिन या पाप आपको डर है, तो वो फिर आप यज्ञ करो, जो हमने कल डिस्कस करा. तो फिर उसके बाद कृष्णा और भी कुछ उसको थोड़ा बहुत आइडिया देते हैं कि आप प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्यों करो, क्योंकि आपको इवन मेंटेन करने के लिए, बॉडी मेंटेन करने के लिए भी करनी पड़ेगी. और दूसरा इसके बाद उन्होंने, जैसे हमने डिस्कस करा, जैसे यज्ञ के अंदर ही कि अलग अलग किस तरह के यज्ञ हैं. जैसे फाइनली हमने जैसे 3 4 5 अलग अलग हैं, पर ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए हमने बोला कि 3 चीजें, साकाम कर्म और अकर्म और विकर्म, उसकी जो आप शास्त्रों के हिसाब से करते हो वो साकाम कर्म है, विकर्म जो शास्त्रों की उल्टा करते हैं. पर दोनों में बंधन है, दोनों में अगर हम कुछ भी फंसते हैं, ठीक है, वो आप अगर आप साकाम कर्म अच्छे कर्म करोगे तो उसमें आप भगवान के धाम नहीं जा सकते, सिर्फ देवी देवताओं के पास या इसमें स्वर्ग लोक में जा सकते हो. पर वो एक टेम्परेरी बेनिफिट है, कोई परमानेंट बेनिफिट नहीं है. तो परमानेंट बेनिफिट के लिए तो आपको पूरा भगवान के भक्त बनना पड़ेगा. तो जो तीसरे उसका तरीका क्या है, अगर आप पाप करते हो तब भी फंसते हो, पुण्य करते हो तब भी फंसते हो, लेकिन उसका तरीका है कि आप अकर्म करो, जिसमें आप फंसो नहीं. आप किसके लिए करो? मेरे लिए. कृष्णा कहते हैं मेरे लिए काम करो. जैसे उसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, हरे कृष्णा. हाँ जी. तो उसमें हम एक एग्जांपल प्रभुपाद देते हैं कि जैसे आपने एक
लाठी से सांप को मारा, तो लाठी का कसूर है उसमें? या किसी को भी मारा आपने तो लाठी का कसूर नहीं है ना, क्योंकि आप मार रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाठी तो एक इंस्ट्रूमेंट है, लाठी से कुछ मतलब उस डंडे से मारा या कुछ इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर आप हमेशा कृष्णा के लिए काम करोगे तो आप बंधन में नहीं फंसोगे, आप सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट रहोगे। आप कृष्णा की डिजायर पूरी करो, जो पाप मुक्त जब बंधन से उनसे मुक्त करना उनका काम है, देन कृष्णा विल सी कि क्या करना है आपका। तो ये पढ़ा हमने, सुना, और उसके बाद हमने ये जो इसका देवी देवताओं को अगर हम यज्ञ करते हैं तो उसमें कैसे हमें करना, उसके क्या तरीका है। और उसमें ये भी पहले पढ़ा साथ में कि थीफ, अदरवाइज हम अगर उनको नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, तो हम क्या है, चोर हैं, चोर कहलाते हैं। और उसके बाद ये भी कहा कि अगर भगवान को आप भोग लगाते हुए नहीं करते तो आप क्या कर रहे हो, आप सिन खा रहे हो, आप पाप खा रहे हो। तो वो उसमें कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन भी होता है कि अच्छा सिन का मतलब ऐसा क्यों, भगवान ऐसे क्यों हैं, ऐसा हमारे पे स्ट्रिक्ट क्यों बनते हैं, हम तो उनके बच्चे हैं। मान लो अगर हम बच्चे हैं तो क्या हम भगवान को ऐसे करना चाहिए? हमारे पास पूरा राइट है, पेरेंट का जो पैसा या कुछ भी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का बहुत मतलब 100% राइट है। बट हमें बस ये समझना है कि जैसे कल भी डिस्कस करा कि कृष्णा है जो, ही इज ए वेरी कहते हैं ना, ही इज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, पर हमारे पिता हैं, हमारे फादर हैं, और सबसे बड़े वेल विशर हैं हमारे, मतलब हमारे लिए ध्यान रखने वाले, हमारा जो भी करते हैं। तो इसलिए वो हमें कुछ भी नहीं कर रहे अपने इंटरेस्ट के लिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो भोग लगाने से उनको क्या मिलता है? बेसिकली उनको प्रेम, उनको जैसे प्रेम चाहिए, उनके पास किसी कुछ चीज की कमी नहीं है। जैसे हमने कल भी एक एग्जांपल दी कि अगर आप किसी छोटा बच्चा अपनी पेरेंट्स को, अपनी मदर को, फादर को कुछ भी अगर कुछ देता है, अगर अपने घर से कुछ भी गिफ्ट देता है, एक आप मान लो कुछ स्वीट स्वीट है, वो भी उसको अपने मुंह में डालता है, जबकि पेरेंट के पैसे से लाया, पर पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है कि मेरा बच्चा मेरे लिए कर रहा है। क्योंकि पेरेंट को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, उसको कोई उसकी प्रॉपर्टी या पैसा या कुछ इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो इसी तरह कृष्णा को हमारे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे भले के लिए। और हम इतना नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते, कृष्णा सब कुछ देते हैं, भगवान सब कुछ देते हैं। मैं एक छोटी सी इसमें मेरे लाइक पंजाबी में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि उसको कैसे, एक छोटी सी एग्जांपल है कि हम लोग इतने लेजी, हमारी कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन क्या है कि जैसे वो एग्जांपल है कि मेरे ना इस पे चेस्ट के छाती पे ऊपर लड्डू पड़ा हुआ है, मेरे कोई आए मुंह में डाल दे। तो बेसिकली हमारा वो है, हम सोचते हैं कि मुझे भोग भी नहीं लगाना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, वो भी शायद हम उसको एज ए क्या लेते हैं कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लेते हैं। भगवान ने सब कुछ दिया, सब कुछ हमें रेडीमेड मिल रहा है, हर कुछ उन्होंने, मतलब आज हम सोच भी नहीं सकते कि अगर आप एक बिस्लरी की बोतल बॉटल लेने जाते हो तो उसके कितने पैसे चार्ज करते हैं, और भगवान हमें क्या क्या दे रहे हैं, इतना कुछ फ्री दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बिजली पानी और सब कुछ सन के थ्रू दे रहे हैं, रेंज दे रहे हैं। तो Hare Krishna, I think some mic is on. Probably, if you could request everyone to put their mics off. Only when needed you can put it on. But आप अपने mics को please बंद रखिए, नहीं तो disturbance होती है बीच में। तो बेसिकली अगर सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम भगवान को भोग लगा के करेंगे तो वो उसमें उनको हमारे प्रेम से खुश होते हैं, और हम एक दूसरे एक्नॉलेजमेंट है कि हम भगवान को रिकग्नाइज करते हैं। नहीं तो एथिस्ट हैं जो जो बिल्कुल भगवान को मानते नहीं है, तो उनसे मतलब उनसे कैसे कंपेयर करें कि जैसे अगर हम भोग लगाते हैं तो एटलीस्ट और चीजें भी हैं, तो बट एटलीस्ट हम वी आर रिकॉग्नाइजिंग कि जो हमें जो सब कुछ मिल रहा है भगवान हमें दे रहे हैं। नहीं तो लोग कहते हैं कि मेरा मेरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। और उसके बाद आज के इसमें जितना भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा लाइट रखें, क्योंकि कल हमें थोड़ा रियलाइज हुआ और कुछ फीडबैक भी मिली कि हम लोग इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर देते हैं तो कई बार उसको प्रोसेस करना या मतलब इजी भी नहीं है। दूसरा ये भी है कि हमें कोई ज्ञानी नहीं बनना, हमारे को एसेंस लेनी है। एसेंस मतलब हम अगर इतना ही समझ लें कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनसे क्या रिश्ता है,
तो वो संबंध कायम कर लें, तो वो सबसे बड़ा मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव होना और चाहिए। मेन आइडिया है कि हमें करना क्या है, उसको प्रैक्टिकली कैसे अपना मतलब क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो आज हम जैसे 17 से 43 तक श्लोकाज हैं, तो उसको हम मतलब सारे श्लोक ट्रांसलेशन वगैरह नहीं पढ़ेंगे, जो बीच बीच में 1 2 3 जो भी इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, जो मतलब प्रभुपाद के फेवरेट कह लो या वो हम मतलब बीच में डिस्कस करेंगे, और अदरवाइज वैसे डिस्कस करेंगे। तो शुरू में जैसे 17-18 श्लोक है ना, तो उसमें जो कृष्णा जो कॉन्शियस पर्सन है, बेसिकली जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, उनको ये बताया गया कि कोई उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई ड्यूटी नहीं है। तो हमें लगेगा अच्छा क्या ड्यूटी नहीं है, तो क्यों ऐसा क्यों क्यों मतलब हमें अभी तक बोल रहे हो आप प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो वो करो, पर उसकी कोई ड्यूटी नहीं, क्यों नहीं है? उसका रीजन है कि जो हमारा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, जो हम जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने का, प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने का मतलब है हमारी, जैसे हमने डिस्कस करा, प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट। लेकिन उसमें यज्ञ ये वो सारा हमने करते हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटी को, उसको साथ साथ हमने वो मतलब देखा। तो लेकिन अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहा है, जो रियलाइज सोल है, जो बिल्कुल रियलाइज हो चुका है, उसके लिए क्या है कि कोई ड्यूटी इसलिए नहीं है कि वो ऑलरेडी प्योरीफाई हो गया है, या उस थ्रू कृष्णा कॉन्शियसनेस प्योरीफाई हो रहा है। जैसे आप हजारों यज्ञ करो, उसके अगेंस्ट अगर आप हरि नाम लेते हो, भगवान का नाम लेते हो, जो कि हमें विश्वास नहीं आता, बहुत लोगों को लगता है ऐसे कैसे होता है, इतना इजी कैसे हो सकता है। मतलब लोगों ने इंप्रेशन ये बनाए हुए हैं कि वो देखा कि इतने हजारों साल की तपस्या करी, वो करी, तब जाके ये कुछ मिलता है, जो मान लो हम आगे उसमें प्रोग्रेस कर पाते हैं। और कलयुग में इतना आसान है, तो इसलिए हम इतना अगर फॉलो करते हैं तो उसको करने की जरूरत नहीं। और फिर कृष्णा कहते हैं कि फिर भी जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, जो डिवोटी, जो रियलाइज सोल है, वो काम करता है, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करता है। क्यों करता है? उसके रीजन है, जैसे 20 से 24 जो श्लोक हैं उसके अंदर वो मतलब यही बताया है कि एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए करता है। एग्जाम्पल सेट, हम उसमें एक 21 नंबर श्लोक का अब ट्रांसलेशन ऑफ श्लोक कर सकते हैं। 21वां श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। Whatever action is performed by a great man, common men follow in his footsteps. And whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. तो बेसिकली क्या है कि इसमें एग्जाम्पल देते हैं, भगवान ये कहते हैं कि आप जो बताते हैं कि जो कोई इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो हमारे रोल मॉडल हम उनको लेते हैं, कि जैसे जो ग्रेट लोग हैं, जो ग्रेट लोग हैं वो जो भी कुछ करते हैं, तो आम जितने लोग हैं उनको बहुत फॉलो करने की कोशिश करते हैं, फॉलो करते भी हैं। तो जैसे आपने अगर मटेरियल लाइफ में आप वही करते हैं कि मान लो कोई अमिताभ बच्चन का फैन है, कोई अपने किसी क्रिकेट विराट कोहली या किसी और ऐसे लोगों के फैन हैं, जो वो करते हैं हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बट फॉलो नहीं, इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो हम डिफरेंस देखेंगे क्या उसमें है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया भगवान ने जनक महाराज की। जनक महाराज हैं, उन्होंने उनको प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के थ्रू ही वो फाइनली उन्होंने पूरा 100% उनके कृष्णा कॉन्शियसनेस हुई है, भगवान को पाया। उनको उन्होंने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करी थी, पर उन्होंने अनअटैच करके करी, तो इसलिए उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। उनका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने क्यों करी, वो एक दिखाने के लिए, लोगों को एक तो दिखाने के लिए करी, कि ये लोगों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि जो जो हम करेंगे वो मतलब ताकि लोग उसको गलत ना लें, गलत फॉलो ना करें, जो हम मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो भी हमारे टीचर्स हैं, जो सिखा रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं सिखाना चाहिए जब तक वो खुद उसको फॉलो नहीं करते। आचरण से सिखाओ, आचार्य बन के सिखाओ। क्योंकि अगर आप कुछ कहते हो कि से डोंट स्मोक, अब सिगरेट नहीं पियो, पर अगर आप खुद पीते हो तो उसकी क्या वैलिडिटी है, क्या क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने बच्चों को बोल रहे हैं, किसी को हाँ, भी। बच्चों को बोल रहे हो, किसी को बोल रहे हो,
तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा, कई बार पेरेंट भी ऐसे होते हैं कि ऐसा मत करो जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो करो जो मैं कह रहा हूँ। पर वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता उसको। अगर पेरेंट, बच्चों को लगता है कि मेरे पेरेंट खुद स्मोक करते हैं और मुझे कह रहे हैं, तो उसका उनको कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, शुरू में शायद वो डरते हुए ना करें, बट फाइनली जब उनको चांस मिलेगा तो वो करेंगे। तो उसके बाद कृष्णा जो है वो अपनी एग्जाम्पल, अपने आप को एज एन एग्जाम्पल यूज करते हैं। तो वो कहते हैं कि उनके लिए तो कोई ड्यूटी नहीं है, भगवान के लिए कोई ड्यूटी नहीं है। इतनी सारी जो, मतलब ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल द कंट्रोलर्स, सारे उनके अंडर है। कुछ भी सोचने पर भी, कुछ भी सोचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उनको कुछ करने की नहीं जरूरत। लेकिन फिर भी वो एग्जाम्पल, मतलब एज ए एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए, वो जैसे द्वारका में थे, किंग थे, उनके पैलेसेस थे, जितने उनके फैमिली थी, उनके लिए साथ पूरा एज ए गृहस्था जैसे उनकी ड्यूटी थी वो पूरी फुलफिल करते थे। तो हमें क्या करना है कि हमें कृष्णा को और जो अथॉरिटीज है उसको फॉलो करना है। और उसमें एक ध्यान रखना है, सबसे बड़ी चीज है कि फॉलो और इमिटेट करने में बहुत फर्क है। जो मैंने पहले भी हमने बताया कि इमिटेट नहीं करना। जैसे हम मटेरियल लाइफ में लोगों को इमिटेट करते हैं कि जो हमारे स्टार्स हैं, पर उनमें कोई वो पोटेंसी नहीं, वो खुद फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन हमें उनको फॉलो करना है, बट इमिटेट नहीं करना। क्यों? रीजन ये है कि जैसे आप एग्जांपल लो, बहुत सारे लॉर्ड शिवा के डिवोटीज हैं, वो गांजा वगैरह स्मोक करते हैं। पर उनका लॉजिक क्या होता है? उनका लॉजिक ये देते हैं कि जी लॉर्ड भी करते हैं, लॉर्ड शिवा भी करते हैं, तो मैं कर लूंगा तो क्या प्रॉब्लम है। बट उनसे अगर कोई पूछे कि अच्छा, लॉर्ड शिवा ने तो जब समुंदर मंथन हुआ था, तो जितना भी जहर निकला था, विष निकला था, पूरा पूरा अपने गले में डाल लिया। तो क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। हम ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो अगर नहीं कर सकते तो हमें उनकी इंस्ट्रक्शन जो बोलते हैं वो फॉलो करनी है, ना कि जो, मतलब उनको देख के उनको करना है। ऐसे ही हम कर ही नहीं सकते। दूसरा, कई बार कई डिवोटीज हैं जो लॉर्ड कृष्णा के रासलीला को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, पर उनको दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग, कोई पता ही नहीं कि उनका पर्पस क्या था, हमारा क्या लेवल है और उनका क्या लेवल है, भगवान क्या है, मतलब ही इज नॉट अटैच्ड और एनीथिंग। तो वो हमें फॉलो नहीं करना, मतलब उसको फॉलो करना है, इमिटेट नहीं करना। तो you want to say something? Okay. तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट कृष्णा क्या कहते हैं, जो 25 से 29 श्लोक हैं, उसमें अटैच वर्कर और डिटैच वर्कर के बारे में फिर दोबारा बता रहे हैं। और बेसिकली डिफरेंस हमने कई बार डिस्कस करा कि उसमें क्या कंपैरिजन अगर करें या क्या डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस है, जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, जो डिटैच्ड है, वो क्या करता है, भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। कुछ भी काम करेगा, जब जो भी कुछ सोचेगा कि मुझे क्या करना है, बिजनेस करना है, मुझे घूमने जाना है, या मुझे कुछ भी करना है, तो सबसे पहले उसका ध्यान जाएगा कि क्या इसमें भगवान खुश होंगे। इसलिए जब वो चूज भी करता है, तो चलो हम फैमिली के साथ जाते हैं, तो चलो कोई अच्छी मान लो धाम में जाके आते हैं। ऐसा नहीं कि वो एंजॉय नहीं करते, वो पूरा एंजॉय करते हैं और ज्यादा एंजॉय करते हैं। पर उनके माइंड में सबसे पहला आता है कि भगवान इसमें खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे। जैसे हम भोग लगाने की बात करी, तो उसमें ये होता है कि अगर हम कुछ भी करेंगे, मान लो कुछ बाहर से मार्केट रेस्टोरेंट से खा रहे हैं, वहां से खा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें लिमिटेशन होती है कि अच्छा, उसको भगवान को कैसे भोग लगाओगे, अनियन गार्लिक नहीं खा भगवान एक्सेप्ट करते। तो अगर भोग लगाते हैं तो भगवान खुश होते हैं। और उनका जो डिवोटीज का यही पर्पज है कि भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे। अगर वो खुश होंगे तो वो एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली आप इसको सब लोग ऐसे मत लेना कि अच्छा, ये तो बहुत ही बड़ा बंधन हो गया, ऐसे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो बड़ी डिफिकल्ट है। एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत इजी है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। पर ये थोड़ा सा, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ माइंडसेट, हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और थोड़ी थोड़ी कॉन्शियसनेस चेंज करने की जरूरत है। उससे ज्यादा ऐसा नहीं कि वो मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते मटेरियल लाइफ में, उससे ज्यादा आपको इंजॉयमेंट और फैसिलिटीज मिलती हैं। पर हमारे लिए क्या है कि जो सबके लिए, जो भी डिवोटीज हैं, उनका जो प्रायोरिटी है वो भगवान को खुश करने की है। और
इसके बाद हम जो मेन भगवान कहते हैं कि जो कुछ लोग नहीं कर रहे, मान लो जो इग्नोरेंट हैं, तो उनको डिस्टर्ब मत करो। क्या होता है कि उसमें हम एक श्लोक पढ़ते हैं, 27 नंबर श्लोक है। तो बीच में आपको कुछ भी लगे प्लीज रेज योर हैंड, और जो भी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो कि वी वुड लाइक टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव। नहीं तो आज हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी करके, ताकि वी हैव मोर टाइम फॉर डिस्कशन आल्सो, एंड बीच में भी आप बोल सकते हो। 27वां श्लोक है, 27th वर्स। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself to be the doer of activities which are in actuality carried out by nature. दोबारा एक बार और पढ़ो। The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself to be the doer of activities which are in actuality carried out by nature. जो सबसे पहले यह है कि इसमें लिखा है कि जो bewildered, जो मतलब बेसिकली इग्नोरेंट हैं, जब bewildered हैं, जो कृष्णा कॉन्शियस में नहीं है, तो उनको क्या लगता है कि आई एम द डूअर, आई एम द डूअर। और उनको ये आइडिया नहीं है कि जो एक्चुअल उसका जो डूअर कौन है। मतलब वो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर की बात करिए, हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं, पर मेन है कि अल्टीमेटली ये भगवान डूअर हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं, जो भी इसमें है, इस इल्यूजन में है, जो भ्रम में है, तो वो ये सोचता है कि मैं आई एम द डूअर। तो उसमें बेसिकली इसमें भगवान जो बता रहे हैं, थिंकिंग ऑफ द इग्नोरेंट, इग्नोरेंट को अज्ञानी जो है, जिनको नहीं नॉलेज है, जो नहीं समझते, उनकी क्या थिंकिंग है। वो ये सोचते हैं कि हम लोग मतलब ये हम डूअर हैं, करता हम इति मन्यते। तो लेकिन करने वाला क्यों है, वो हमने जैसे शेयर करा कि वो भगवान है। तो उसका रीजन क्या है? क्या रीजन है कि वो ये सोचते हैं, पर जो डिवोटी है वो नहीं सोचता। उसका जो बेसिक उसका रीजन है, वो आइडेंटिटी की बात है। वो गलत अपनी पहचान नहीं समझता। जो भक्त है उसको आइडेंटिटी पता है अपनी। एक तो हमने आइडेंटिटी की बात करी कि आइडेंटिटी, हमारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, ट्रू जो हम क्या है, एक्चुअल क्या है। जैसे कल भी हमने करा कि हम कोई बोन्स और ब्लड और यूरिन और इसके जो बैग नहीं है, जो हमारी बॉडी सिर्फ बॉडी है, ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है, हमारी सोल है। पर सोल क्या है? अल्टीमेटली सोल, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। हम भगवान के क्या है, उसको बोलते हैं ओके। तो हम जो हैं भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो अगर हम एज ए पार्ट एंड पार्सल हैं, तो ऑब्वियसली हम खुश कैसे रहेंगे? जब तक हम भगवान के साथ हैं। तो भगवान के साथ हैं तो वो हम उनकी, हमारी आइडेंटिटी क्या हुआ है कि हम उनके अटर्नल सर्वेंट हैं। और सर्वेंट के लिए भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। हम बोलते हैं क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सर्वेंट की मतलब इंफीरियर है, हम बहुत इंफीरियर हैं। तो ये मतलब हमारा, क्योंकि उसमें गलती नहीं हमारी, हमने यही देखा हुआ है। हम जैसे ट्रीट करते हैं अपने सर्वेंट्स को, या जैसे भी लोग ट्रीट करते हैं, सारी दुनिया करती है, दस्तूर है कह लो यहाँ का, मटीरियल वर्ल्ड का अनफॉर्चुनेटली। तो सर्वेंट को हम बहुत नीचा समझते हैं। तो ये वहां पे हमें लगता है कि सर्वेंट होना बहुत बुरी चीज है। बट जो रियल डिवोटी है वो जानता है कि बीइंग सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, भगवान के सर्वेंट होना सबसे बड़ी मतलब हैप्पीनेस की बात हो सकती है। और हम खुश होते हैं, ऐसा नहीं कि बोलने के लिए, मतलब हमारी जो हैप्पीनेस उसी में ही है। और भगवान में और डिवोटी में कंपटीशन चलता है। भगवान मतलब डिवोटी को सर्व करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, और डिवोटी भगवान को करना चाहते हैं। तो वहां एक कंपटीशन, डिफरेंट टाइप का कंपटीशन है। यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में हम अपने जिसको भी हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिसका जितना फायदा उठा सकते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं, देने की कोशिश नहीं करते। लेकिन भगवान और जब डिवोटी का रिलेशन है, उसमें मैक्सिमम
लव का रिलेशन है, मैक्सिमम क्या मतलब 100% लव का रिलेशन है, और वो एक दूसरे के लिए मैक्सिमम करना चाहते हैं, ना कि कुछ भी सोचते हैं कि चलो ये मेरे लिए, मेरा पहले वो नहीं है। तो उसके सबसे बड़े उदाहरण भी हैं, जैसे कृष्णा, अगर हम भगवत गीता का कवर पेज भी देखें, जो आपके पास भगवत गीता होंगी, तो उसमें कृष्णा का क्या है, क्या रोल लिया हुआ है उन्होंने। ही इज द चैरिटियर, वो सारथी बने हुए हैं अर्जुन के। अर्जुन कौन है? उनका मित्र भी है और उनका भक्त भी है। तो जितने भी भक्त हैं सबका एक रिश्ता है भगवान से। तो किसी का वात्सल्य का है, किसी का साख्य का है, वो अलग अलग, वो एक अलग टॉपिक है। तो उनका मित्र का रिश्ता है और उनके शिष्य का भी रिश्ता है। तो वो अपने भक्त के दास बनने में मतलब बहुत उनको प्रसन्नता होती है भगवान को। तो वो सारथी कौन है? अगर हम अपने आज के टर्म्स में बोलें तो ही इज द ड्राइवर ऑफ अर्जुन। वो भगवान अपने भक्त के ड्राइवर बनने को तैयार हो जाते हैं। और ड्राइवर भी किस तरह के ड्राइवर? कि युद्ध में इट्स नॉट लाइक ऑर्डिनरी ड्राइवर। आजकल के ड्राइवर्स तो वो उतना करेंगे भी नहीं जितना उन्होंने किया, कि वो क्योंकि भगवान है तो वो युद्ध में क्योंकि इतना शोर हो रहा है तो उनको पाँव के जैसे कहते हैं ना कि उससे उनको बताना पड़ता है बार बार अर्जुन को, कभी पाँव से ऐसे, कभी कैसे, कि इधर मोड़ो उधर मोड़ो। तो भगवान सब कुछ टॉलरेट कर रहे हैं, वो कुछ बुरा नहीं मान रहे। सो दैट इज द लेवल ऑफ हिज सर्विस, कि भगवान कितना आनंद उनको मिलता है कि अपने भक्त की सेवा करने का। तो ये कंपटीशन की जो हम बात कर रहे थे, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि कैसे भगवान ने एक बार राजसूय यज्ञ हुआ तो उसमें सबके जितने भी गेस्ट आए हुए थे, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ रखा था। अगर आपने महाभारत भी देखी होगी, अगर टीवी पे या कुछ, तो आपने देखा होगा। तो उसमें वो सबके पांव धो रहे हैं, जितने भी राजा आए थे, और वो सब, उनको कोई अहंकार नहीं, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल भी। सो लाइक दैट। और हम लोग क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम सोचते हैं कि जो वी आर द डूअर्स, और ये मतलब डूअर्स भगवान देते, जबकि इसमें ये बताया कि सब कुछ भगवान का है, भगवान देते हैं। तो जो भी आज मटेरियल वर्ल्ड में क्रिएट करा, इसमें कुछ भी फैसिलिटीज हैं, जो भी चीजें हैं भगवान ने क्रिएट करी, लेकिन हम बोलते हैं आई एम द डूअर, इसलिए मेरा उस पर हक है। तो जो इसकी मान लो एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट जैसे एक हॉर्स है और डॉग है, उनमें कंपटीशन करा दो, रेसिंग कंपटीशन, कौन जीतेगा? ऑब्वियसली हॉर्स, क्यों? रेसिंग कंपटीशन है, हॉर्स इज गुड इन दिस थिंग, उसकी भगवान ने दी हुई है उसको ये वाली क्वालिटी। फिर उन्हीं में हॉर्स और डॉग के अंदर बार्किंग कंपटीशन करा दो, कौन जीतेगा? डॉग जीतेगा। तो अगर हॉर्स कहे मेरा फर्स्ट प्राइज आ गया रेसिंग में, तो आई शुड बी लाइक, मुझे फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए जो भी, क्योंकि मैंने रेस जीती है। डॉग कह सकता है कि अच्छा मैं तो बार्किंग में फर्स्ट हूं, पर क्या वो उन्होंने खुद उनकी कोई अपनी कैपेबिलिटी है? क्योंकि उनको बॉडी ऐसी मिली है, उनकी हॉर्स की बॉडी वैसी है, डॉग की बॉडी वैसी है, तो वो किसने दी? भगवान ने, थ्रू मटेरियल नेचर, बट भगवान ने दी। अल्टीमेटली जो देने वाले भगवान है। तो उसमें ये नहीं कह सकते कि जी अच्छा मैं आई एम द डूअर, मैंने कर लिया। अब बहुत सारे लोग हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, मान लो कोई गांव से आया 10 साल की उम्र में, 15 साल की या 20-25 साल की उम्र में, कोई जैसे हमारे पार्टीशन हुई तो कोई पाकिस्तान से लोग आए, तो वो सारे हम लोग करते हैं डिस्कस, और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पर कोई क्लैरिटी नहीं होती, तो उनको सारे बोलते हैं, बड़े प्राउड होते हैं हम लोग, हम खुद, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कि आई एम द डूअर। मैं जब आया था, मैं भी अब बोलता था कि मैं जब दिल्ली आया था तो मे बी मेरे पास 5,000 रुपए थे, या जो भी, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो हमें आज कितने हैं? मेरे पास कोई कहता है कि मेरे पास आज 100 करोड़ है, कोई 50 करोड़ है, किसी के 20 करोड़ है, किसी कुछ है। बहुत सारे लोग जो स्पेशली जो जो अच्छे, मतलब जिनकी वेल ऑफ होते हैं, जो ज्यादा पैसा है सबको, उनमें अहंकार सबसे ज्यादा आता है। उनको लगता है या कि आई पढ़ाई एम द लिखाई भी, डूअर, किसी भी पढ़ाई तरह लिखाई की से या स्किल्स कोई है। स्किल्स कोई भी हो जाए, तो हमने करा, मैंने करा। पर हमें ये सोचना चाहिए कि अगर आपको दिमाग दिया तो किसने दिया? कोई भी स्किल सेट दिया, किसने दिया? तो ये सारी अगर आपको बॉडी नहीं मिलेगी, ऐसी बॉडी या भगवान नहीं देंगे, इंटेलिजेंस नहीं देंगे, तो आप क्या अपने आप से कर सकते हो?
नहीं कर सकते ना, जैसे जो डॉग है वो रेसिंग में नहीं कर सकता हॉर्स के बराबर, और हॉर्स जो बार्किंग में नहीं कर सकता। तो ऐसा कैपेबिलिटी जो भी दी है भगवान देते हैं, तो इसलिए हमें मतलब वी शुड नॉट बी प्राउड, वी आर नॉट द डूअर्स। एक्चुअल डूअर जैसे डिवोटी, क्योंकि अभी आइडेंटिटी समझता है, और जो डूअर है वो अपनी बॉडी बॉडी से करता है कि हम सिर्फ बॉडी, ये शरीर हैं, सिर्फ शरीर हैं, तो जो भी हम कर रहे हैं तो मेरा बस इतना ही है। ही डजंट अंडरस्टैंड कि उसके बैकग्राउंड क्या है, अल्टीमेटली कहाँ से आया, मेरे पुराने जन्मों का कुछ संस्कार हैं या क्या है, मेरे को ऐसी बॉडी अच्छी मिली तो क्यों मिली, तो उसके बहुत सारे रीजन है। तो ये लोग मतलब हम लोग नहीं समझते। जैसे कोई भी सिंगर हो, बहुत बड़ा सिंगर हो, तो वो क्या कहते हैं कि जी कहे, अगर कहे तो ये तो मेरी कैपेबिलिटी, आई एम द डूअर। ठीक है, आपको भगवान ने इंस्ट्रूमेंट बनाया, आपका रोल है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ, आपके भगवान आपसे खुश हुए, या जैसे भी आपने कोई वो करी होगी, पुराने कुछ संस्कार हैं, कर्माज हैं, जो भी कह लो, पर अल्टीमेटली करने वाले कौन है? भगवान है। तो हमें मतलब वो नहीं समझना चाहिए कि जी आई एम द डूअर। तो एनीथिंग which anybody wants to say something? ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि जब हमें ये समझ आ जाती है, तो उसके बाद मतलब हमें क्या है कि जो डिवोटी है, जो समझता है, अपनी आइडेंटिटी समझता है, तो उसको अपना रोल पता चल जाता है। मतलब वो रोल क्या है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करूंगा तो खुश रहूंगा, उसमें भला उसी का है, डिवोटी का भला है, भगवान का नहीं है। भगवान तो परम पिता हैं, वो तो इतने मर्सीफुल हैं, कंपैशनेट हैं, वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। पर वो ही इज वेटिंग, जैसे वो तो वेट कर रहे हैं कि मेरे पास कब आएंगे, मेरे बच्चे कब आएंगे। तो अगर हम लोग इसमें करेंगे, कुछ सेवा करेंगे, भगवान के एक्चुअली जो जैसा जैसा रास्ता उन्होंने बताया है वो फॉलो करेंगे, तो हम उनका प्रेम पा सकते हैं। तो उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज, जैसे हमने पहले बोला कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उसमें सॉरी, जैसे अभी जिस हम टॉपिक पे आ रहे हैं, बेसिकली हम कहते हैं कि ये स्पोर्ट्स पर्सन है, या ये डॉक्टर है, या ये इंजीनियर है, उसका मतलब क्या है? तो अगर आप सोचिए उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ऐसे समवन इज अ क्रिकेटर, तो वो क्रिकेट खेलता है, वो एक्शन कर रहा है। और अगर कोई डॉक्टर है, तो वो मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा है। हम कहते हैं ना कि ही इज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, या ही इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। या ये इंजीनियर है तो ये जॉब कर रहा है, तो ये अपना या बिजनेस कर रहा है उसी पे बेस्ड। और या समवन इज अ सीए या कुछ भी है, तो सम इट हैज टू बी एक्शन। सो सिमिलरली हम कृष्णा कॉन्शियस बार बार सुन रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियस होना है, कृष्णा कॉन्शियस। एक कृष्णा कॉन्शियस या कृष्ण भावनामृत व्यक्ति क्या करता है? जो ये वर्ड प्रभुपाद ने यूज करा कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन का जो पूरा अर्थ है यही है। और बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं है, बट उनका भाव था कि कैसे लोगों को कृष्ण भावनामृत, बेसिकली दुनिया भर में, मतलब दुनिया भर में ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेरियस कंट्रीज, वेदर इट इज रशिया, चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह लोगों में इतने सारे लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ने लगे और कृष्णा से जुड़ गए, सही मायने में, सही तरीके से। तो उन्होंने ऐसा क्या किया एक्चुअली? इट वाज नॉट कि सिर्फ डिस्कस करने से, सिर्फ हम बातें तो बहुत कर सकते हैं, हम वी कैन टॉक एंड वी कैन डिस्कस, और हम अच्छा सोच सकते हैं या अच्छी बातें बोल सकते हैं, पर क्या अच्छा बोलने से कोई क्रिकेटर अच्छा बन जाएगा? उसको खेलना तो पड़ेगा ना। तो उसी तरह से अगर किसी को भक्त बनना है, तो वो उसको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। सिर्फ अच्छी बातें करने से हम भक्त नहीं बन सकते। सो वी कैन या, और इट्स नॉट डिफिकल्ट, जैसे बताया कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है या डिवोशनल सर्विस है, सर्विस, डिवोशनल सर्विस बोलते हैं इसको, अकेली डिवोशन नहीं बोलते, डिवोशन सर्विस, क्योंकि सर्विस है, एक्टिविटी है, सेवा है। सेवा है। तो पर बहुत इजी है, मतलब आज कलयुग में इतना आसान तरीका बना दिया है कि ये वो नहीं है कि आज से मान लो सतयुग में या दूसरे त्रेता युग में क्या होता था, लोगों को हजारों साल तक, जैसे विश्वामित्र मुनि, उनका 60,000 साल तक तपस्या करी। तो यहाँ आपको कोई नहीं कह रहा कि आप एक टांग पे खड़े होके 10 साल सेवा भगवान के लिए मेडिटेशन करो, मतलब जबकि वो तरीके हैं इसमें भी, जैसे हमने सांस रोक के और वो सब वो जो योगा लेडर है, योगा की जो कहते हैं अलग अलग रंग से हैं, तो उस सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां हैं,
तो उसमें अगर वो जाना चाहते हो प्रोसेस तो वो भी कर सकते हो। पर यहाँ पे जो प्रभुपाद है वो सबसे सिंपल तरीका दे रहे हैं। चाहे हम आज कर्म योगा की बात कर रहे हैं, पर जो उनका पर्पस है कृष्णा का अल्टीमेटली वो क्या है, भक्ति योगा देना। उसका रीजन है कि वो मतलब सब कुछ बता रहे हैं, आज अर्जुन को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप भी मार्केट में भी जाते हो ना, तो सब कुछ है, आपको सबसे बेस्ट चीज लोगे, लेकिन आप सब यू हैव ए हैबिट कि चलो मैं ये भी पूछ लूं, इसके बारे में पूछ लूं, इसके बारे में पूछ लूं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। बट अल्टीमेटली हर इंसान ये चाहेगा कि हम बेस्ट चीज लें। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत आसान है, बहुत इजी है, और छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स जैसे कहते हैं ना, कि आपको ऐसा नहीं करना कि आज आप डर जाओगे जी ये तो बहुत ही मुश्किल है, मेरे को इतना, मैं ये भी मेरे को हर रोज भोग लगाना पड़ेगा, मेरे को ये करना पड़ेगा, मेरे को वो करना पड़ेगा, तो इट्स सो डिफिकल्ट। लेकिन इट्स नॉट डिफिकल्ट। आप छोटे एक बेबी स्टेप से शुरू कर दो घर में। जैसे उसमें बहुत तरीके हैं। अब जैसे नवदा भक्ति बोलते हैं कि 9 तरीका के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ऐसे करके 9 उसके लिम्स हैं। आप कोई एक भी ले लोगे, एक को परफेक्ट भी कर लोगे, उससे भी आप भगवान को पा सकते हो। पर शुरू करने के लिए आप सिंपल एक चैंटिंग भगवान की, अगर नाम, हमें ये इस पे आज पोटेंसी हम समझ नहीं पाते, कुछ उसकी हमें लगता है ऐसे कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में वो ही बना हुआ है कि तो 10,000 साल उसमें करके लोगों ने, ऋषि मुनियों ने वो पाया। पर कलयुग में हमें भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सिंप्लीफाई करके एक तरीका दिया है, और सारी पोटेंसी, सारी शक्ति नाम में, भगवान और भगवान के नाम में जैसे कहते हैं कोई फर्क नहीं है, तो पूरी की पूरी शक्ति नाम में डाल दी। आप मतलब जैसे कहते हैं ना, उतने पाप कर नहीं सकते जितने, अगर एक शुद्ध नाम ले लो उससे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। जब उसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहे, उसके भी आगे अपराध होते हैं। अगर हम पाप करने सोचे मैं तो इसके साथ में खत्म कर लूंगा, पर आइडिया इसकी पोटेंसी बहुत है, बहुत शक्ति है भगवान के नाम में। हमारी लिमिटेशन हमारी है, हम कुएं के डड्डू की तरह, डॉक्टर फ्रॉग बोलते हैं प्रभुपाद, मेंढक मेंढक की तरह हमारी सोच है। हम बड़ा सोच ही नहीं सकते, हमें लगता है पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मेंढक को बोलते हैं, मेंढक के पास दूसरा कोई मेंढक आया बाहर से, तो कहता है मैं कहाँ से आया हूँ, कहते हैं अटलांटिक ओशन से आया हूँ। अच्छा, कहते बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? तो उसने जो पहले वाला वो कुएं में था, तो उसको लगा ये 5 फीट या 10 फीट है, तो 20 होगा, 50 होगा। तो पूछता 50 है, 100 है, 200 है, 500 है। ही कुड नॉट इवन इमेजिन, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, हमें लगता है कि ये ऐसे हो ही नहीं सकता। तो पर इट्स ट्रू। सबसे बड़ी चीज है कि अगर हमें भगवान को हम समझ सकते हैं, संबंध कायम कर सकते हैं। अगर हमें भगवान लगता है कि कृष्णा भगवान हैं, भगवत गीता पढ़ने से 18 चैप्टर आप पढ़ोगे, आपको लगता है पहले संस्कार हैं, आप लोग इसलिए यहाँ पे हो। अगर हमें लगता है कि भगवान हैं, कृष्णा भगवान हैं, फिर हमारे को फेथ हो जाएगा। जो भी वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हरि नाम लो, मेरा नाम लो, मेरा ये भोग लगाओ, मेरा ये करो, हम सब पे विश्वास करेंगे। तो इसलिए भगवान को जानना जरूरी है, और ये जानना धीरे धीरे प्रोसेस है। तो आप जैसे हरि नाम कीर्तन से शुरू कर सकते हो, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट बच्चों के साथ कुछ भी। अगर आप शुरू में पूरा भोग नहीं लगा सकते तीनों टाइम, जबकि आइडियल है आप कुछ भी भगवान के लिए, खुशी के लिए कुक करो सोच के कि भगवान की आज मैं भगवान को ये वाला चीज भोग लगाती हूँ या लगाता हूँ। उनको प्यार से लगाओ, वो सारे परिवार में दो, ऑनर करो। आप पूरा प्रसाद मतलब भोग लगा सकते हो, जैसे पूरा अपने दाल सब्जी जो भी बनाया, सब कुछ बनाया, वो आप ऑफर करो, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया अल्टीमेटली। पर डरने वाली बात नहीं, अगर शुरू में आप कम कर सकते हो, कम जैसे जितना कर सकते हो, तो भगवान वो नहीं है, डिक्टेटर नहीं है, ऑटोक्रेट नहीं है। ही डज नॉट से कि जी आपने अगर 2 दिन कर दिया तो 1 दिन भूल गए या नहीं करा तो मैं तो आपको पनिश करूंगा। कई लोग इसीलिए शुरू नहीं कर पाते कि वो सोचते हैं अरे, क्योंकि वो हमने बचपन से ही सीखा है, वो डर वाला जो हमारे अंदर वो डाला गया है ना भगवान के लिए, कि गॉड फियरिंग, बस भगवान से प्रेम का वाला संबंध हमें आइडिया ही नहीं है कि वो भी हो सकता है। तो हमारे शुरू से ये कि अगर एक बार शुरू कर दो तो अगर नहीं करो तो फिर अपराध होता है, पाप लगता है, या वो देवी देवता नाराज हो जाते हैं। वहां होते होंगे, आई एम श्योर होते होंगे देवी देवताओं का, क्योंकि बड़ा फॉर्मल रिश्ता है। पर भगवान के साथ फॉर्मेलिटी नहीं है। अपने माँ बाप कभी नाराज थोड़ी होते हैं। अगर एक दिन आपने उनसे कैसे किया, एक दिन कैसे किया, पर वो कभी नाराज नहीं होते।
तो उसी तरीके से भगवान भी हैं, वो कभी नाराज नहीं होते, तो आपको वो डर तो पहले निकाल ही देना चाहिए दिमाग से। तो डर एक्चुअली प्रेम और का हाँ, संबंध है। बेसिकली भगवान जो है प्रेम के भूखे हैं, कुछ भी करते हैं प्रेम के लिए। मतलब आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी। तो हमें क्या है, फेथ, विश्वास करना है, इस चीज को मानना है। अगर भगवत गीता को आप पढ़ के आपको सिर्फ इतनी भी आप अपना ये हो जाए कि जी भगवान ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि फेथ नहीं है। आप सबको, जैसे कल भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था, तो मेरा मतलब उसमें ये नहीं था कि फेथ नहीं है, फेथ है। पर जैसे जैसे हम फॉलो करते हैं तो हमारा फेथ स्ट्रांग होता जाता है। किसी में, चाहे आप, हम या कोई भी, सारे जितने भी हैं, तो शुरू में सब 100% फेथ नहीं होता, पर हमें लगता है। बट वो जैसे जैसे आप फॉलो करते हो और जैसे जैसे आपको भगवान से रेसिप्रोकेशन, रेसिप्रोकेशन मतलब आदान बदले प्रदान, में आदान प्रदान होता आदान है, प्रदान होता है। भगवान भी आपकी कुछ सोचते हो कि वो खुश होते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, आपको रियलाइजेशंस देंगे अपने रियलाइजेशन आप। देते हैं। तो आप फिर उसको आगे और करना चाहते हो, आप इनकरेज होते हो और भगवान करते हैं, तो धीरे धीरे फेथ बढ़ता है। तो फेथ के लिए मैं आपको एक छोटी सी, पता नहीं आपने सुनी होगी, बहुत ज्यादा हम सुनाते हैं, मतलब सब लोग शेयर करते हैं कि फेथ कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब जो श्रद्धा जिसे श्रद्धा, कहते हैं। श्रद्धा जितनी। तो एक बार क्या हुआ कि मैं अभी एग्जैक्ट, मेरे को 100% वर्ड्स नहीं है, पर मैं एसेंस बताता हूँ कि एक बार एक ब्राह्मण थे, और वो काफी मतलब भक्ति करने की कोशिश करते थे, जितनी अपनी मतलब भगवान के रिचुअल्स वगैरह में ज्यादा विश्वास करते थे। पूरा आरती ये करना वो करना जो भी करते थे। और एक थे मोची, मोची बोलते थे, तो मोची थे। तो एक बार नारद मुनि घूमते घूमते उनके पास गए, तो ब्राह्मण के पास पहले गए। तो ब्राह्मण क्या कहते हैं कि अच्छा नारद जी, आप तो काफी भगवान के क्लोज हो, क्लोज एसोसिएट हो, तो आप तो जानते ही हैं कि सब कुछ भगवान के दिल में क्या है। पर फिर भी मुझे भी पता है कि मेरा ये लास्ट जन्म है, मेरा आखिरी जन्म है, इसके बाद तो मैं भगवान के धाम ही जाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आप जब मिलोगे नेक्स्ट टाइम भगवान से, तो आप पूछना जरूर मेरा कितना टाइम लगेगा मेरी मिलने में, क्या बोलते हैं उसको, लिबरेशन या मुक्ति। मुक्ति, मुक्ति में। तो कहते, नारद मुनि कहते ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पूछ लूंगा। फिर वो मोची के पास जाते हैं। तो मोची बहुत हम्बल होता है, तो ही विनम्र। नमर, हाँ, विनम्र, हाँ। विनम्र जो भी। तो वो कहता है कि उसको बहुत लगता है कि मैं तो ऐसे बहुत ही पाप के चक्रों में पड़ा हूँ, कैसा कैसा काम कर रहा हूँ, चमड़े का काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो उसके बाद जाते हैं, तो कहते हैं, वो उनको प्रणाम करता है नारद मुनि को, और उसके बाद पूछता है कि नारद जी, मेरा तो बहुत ही जीवन ऐसा है, मेरे को पता है मेरा तो कोई चांस नहीं है, पर फिर भी कभी आप जाओगे तो पूछना कि मेरे को कितने जन्म लगेंगे। तो कहते ठीक है। तो नारद मुनि भगवान से मिलते हैं और भगवान से सेम क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये पूछा उन्होंने। तो भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मण है उनको बोलना तुम्हारे अभी कम से कम 100 जन्म और लगेंगे, और जो मोची है उसको बोलना तुम्हारा ये लास्ट जन्म है। तो वो कहते हैं, थोड़ा नारद मुनि भी हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों। तो कहते पर साथ में उनको बोलना, जब वो आपसे पूछेंगे तो वो आपसे ये भी पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो आप बोलना कि वो सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे थे। कहते ठीक है। तो वो जाते हैं। तो ब्राह्मण कहता है कि अच्छा, नारद मुनि से आए, दंडवत प्रणाम ये वो करके, उसके बाद कहता है जी मुझे वैसे पता ही है कि मेरा, मैंने जैसे बताया कि लास्ट जन्म है, पर फिर भी आपने पूछा। तो कहते हाँ पूछा था, आपके 100 जन्म लगेंगे। तो थोड़े अपसेट होते हैं, कहते कि ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब आप भगवान से मिले ही नहीं, अगर मिले होते तो ये आंसर नहीं होता। तो फिर वो कहते अच्छा चलो ये बताओ भगवान कर क्या रहे थे। तो बताते हैं नारद मुनि कि वो तो सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे थे। तो वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, कभी सुई की नोक में से हाथी को निकाल सकता है, ये पॉसिबल है, इसका मतलब आप भगवान से मिले ही नहीं, जो मैं आपके विश्वास नहीं करता। तो वहां से नारद मुनि चले जाते हैं। नारद मुनि जाते हैं फिर मोची के पास। तो मोची को बोलते हैं सेम, कि उन्हें पूछते हैं तो बताते हैं कि आपका लास्ट जन्म है। मोची बहुत खुश होता है, कहता मेरे में तो कोई क्वालिटी नहीं है, मेरे में तो कुछ है ही नहीं, गुण ही नहीं है, मेरा तो, मैं तो डिजर्व नहीं करता, मेरे पता नहीं कितने लाखों जन्म लगने चाहिए, लगेंगे, पर भगवान तो भगवान है, वो इतने इतने दयालु हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब बहुत खुश होते हैं और फिर पूछते हैं कि आप, बरगद की पेड़ हाँ, नीचे। तो कहते कैसे आप भगवान कर क्या रहे थे। तो वो सेम बताते हैं उनको कि
हाथी की मतलब सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे थे। तो वो कहते वाह, मोची कहता वाह, भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, मतलब भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि थोड़े हैरान होते हैं कि ये कैसे हुआ, कि इसको ऐसा कैसे लग गया कि कुछ भी कर सकते हैं, इतना हाथी की नोक में से कैसे निकाल सकते हैं। तो फिर उनसे पूछते हैं कि आपको ये कैसे विश्वास कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान जो एक बरकत का जो पेड़ होता है इतना बड़ा, मान लो 500 फुट या जितना भी होता है, एक छोटे से सीड सीड बीज। बीज, छोटे से बीज से वो इतना बड़ा पेड़ निकाल सकते हैं, तो जो सुई की नोक में से हाथी को क्यों नहीं निकाल सकते। तो आइडिया है फेथ, हमारा जैसे जैसे हम करेंगे फेथ बढ़ता रहेगा। अगर भगवान में फेथ है तो कुछ भी पॉसिबल है, और उतना जल्दी भगवान मिलते हैं। एक और, मैं बहुत लंबा नहीं करके, पर एक छोटा सा और, जैसे वो भी पंजाबी का एक है कि एक धन्ना जट, मतलब वो था, तो उसको बेसिकली वो गया कहीं कुएं में के पास, तो वहां पे एक बंदा अपना पूरा एक रोप, बड़ा सा रस्सा जो भी कहते हैं, वो लटका के गले में लटका के, या जो भी हाथ पकड़ा हुआ था तो लटका हुआ था। तो वो कहता है क्या कर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है। तो कहता मैं ना ऐसे, मैंने सुना है कि ऐसे भगवान मिल जाते हैं जो ऑस्टेरिटी या जो भी ऐसे तपस्या करने से। तो वो तो सिंपल होता है पर आप बहुत, लोग कोई मतलब प्लीज ये हमें ट्राई मत करना। इमिटेट नहीं करना, हमने इमिटेट नहीं करना बार बार। तो वो क्या करता है, अपनी पगड़ी उतारता है और लटक जाता है। तो 5 मिनट में भगवान उसको मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला है वो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट करके आया हुआ है, उसको फेथ नहीं है, उसने सुना और अपना अरेंजमेंट पूरा रखा है। ही इज नॉट डिपेंडिंग, वो भगवान पे डिपेंड नहीं कर रहा, राइट। और जो दूसरे वाले ने 100% डिपेंड कर रहा था, भगवान उसको पता है कि ये तो अभी जाएगा, गिरेगा, मरेगा, तो भगवान एकदम उसको पकड़ते हैं। तो आइडिया इज फेथ की बात बता रहे हैं, पर हमें जैसे पहले भी हमने डिस्कस करा कि इमिटेट नहीं करना, हमें फॉलो करना इंस्ट्रक्शंस भगवान की, उनके मतलब कोई नकल नहीं करनी इन चीजों की, जो भी डिवोटीज की भी ऐसी क्योंकि सब भक्तों का अलग 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 लेवल है। लेवल है। किसी का आज मैं किसी की अगर नकल करूं और मैं फिर मतलब मुंह के बल सिर के बल गिरूंगी, उसका कोई फायदा नहीं। हमें धीरे धीरे स्टेप स्टेप करके हमें अपनी पोजीशन समझते हुए कि अभी हमारी तो मुझे अपनी पोजीशन समझनी है कि मेरी अभी बहुत कम है, जैसे मैं समझती हूँ। तो मुझे बहुत धीरे धीरे अपने कदम उठा के चलना है, और ना कि उनको कॉपी, उनको हाँ फॉलो करना है बस, कोई कि उनके कदमों पे चलना है, बट ना कि उनकी नकल करनी है। तो इसके बाद 30 और 32, 30, 31, 32 में भगवान बताते हैं कि जो कृष्णा का अगर वर्क फॉर कृष्णा तो उसको फॉलो करते हैं, तो बेसिकली उसमें ना भगवान अर्जुन को कुछ चॉइस नहीं देते, कहते हैं कि यू जस्ट फॉलो इट। क्योंकि क्या है, जब उन्होंने जैसे सेकंड चैप्टर में आपने सुना होगा कि आप भगवान को एक बार उन्होंने अपने आप को कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो उनको गुरु मान लिया, तो भगवान भी गुरु की पोजीशन लेते हैं। तो फिर इसमें इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें ये सोचना नहीं कि क्या, क्यों, क्या, कैसे, यू हैव टू एग्जीक्यूट इट, सिर्फ इसको आपने उसको पूरा करना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो करना है। तो साथ में वो भी बताते हैं भगवान इसमें कि फेथ की बात, अगर जैसे हमने फेथ की बात डिस्कस करी, कि अगर आप में फेथ है तो अगर आप पूरा 100% नहीं भी कर पाओगे तो भी लिबरेट हो जाओगे। क्योंकि भगवान क्या देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमने करना नहीं है, बिल्कुल हमें उस चीज का फायदा उठाना है, पर भगवान हमारी एफर्ट देखते हैं, हमारी कोशिश देखते हैं। उनको भी पता है कि हमारे में कोई काबिलियत नहीं है, लिविंग एंटिटी हमारी कुछ भी पहचान नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। भगवान द लॉर्ड इज सो ग्रेट, इतने बड़े हैं, उनके सामने अगर जो हम क्वालिफिकेशन, अगर हमें जो चाहिए भी भगवान के धाम जाने में, हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम, हमारी डिजायर है, हमारी एफर्ट है, हम ट्राई करते हैं, तो भगवान हमें अपने आप जैसे भी ट्रेनिंग देनी है ट्रेनिंग देंगे, पकड़ेंगे। जैसे एक छोटे बच्चे को जब वो चलना शुरू करता है, तो अगर वो एक स्टेप लेता है तो मदर उंगली पकड़ के या फादर उंगली पकड़ के उसको ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ तो भगवान अपने आप गोद में उठा लेते हैं या ट्रेनिंग देंगे, जो भी करना है, लेकिन हमें कोशिश करनी है। बेसिकली हमें अपनी सिंसियरिटी दिखानी है, सिंसियरली करेंगे, उसमें डिस्करेज नहीं होना कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, अभी इतने साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए। क्योंकि हमारा, जैसे हमने मेंढक की एग्जांपल दी, हमें लगता है कि 60, 70, 80 साल का जो जन्म है, इसी में हमारा पता नहीं सारा कुछ है।
पर हमें ये नहीं पता कि हमने मिलियंस एंड बिलियंस करोड़ों सालों से हमारी ये जो जमी हुई है अंदर मैल जमी हुई है, उसमें थोड़ा सा अगर टाइम भी लगता है तो इट्स फाइन। तो यही 33 से 35 वाले में वो पेशेंस की बात कर रहे हैं कि अगर आप अपनी नेचर के हिसाब से काम करोगे, नेचर जो जो जिसकी जैसे हमने जैसी नेचर है, जैसे ब्राह्मण की नेचर वायलेंट नहीं होगी ज्यादा, तो वो पीसफुल है, क्षत्रिय थोड़ा वायलेंट हो सकता है, उसके नेचर से के हिसाब से काम करोगे तो आप धीरे धीरे प्योरीफाई हो जाओगे। तो मतलब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, नेचर के हिसाब से करने की जरूरत है। और उसकी भी वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, बट एनीवे बेसिकली अगर मतलब हम नेचर के हिसाब से काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, उसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। लेकिन ये जो ब्राह्मण की या क्षत्रिय की ड्यूटी है वो उसी को सूट करती है जो है। पर जब आप ट्रांसीडेंटल हो जाते हो, ट्रांसीडेंटल का मतलब इन गुणों से, क्योंकि सारी चीजें 3 गुण कराते हैं हमारे, जब तक मटेरियल इन्फ्लुएंस कैसे करती है मटेरियल एनर्जी 3 गुणों के थ्रू। तो अगर हम इनसे ऊपर जो भी उठ जाता है वो उसको कोई मतलब ये रूल्स रेगुलेशन वो उन पे अप्लाई नहीं होते। जैसे इसमें विश्वामित्र की एग्जांपल है कि वो पहले क्या थे, ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय बन गए, सॉरी क्षत्रिय थे फिर ब्राह्मण बन गए। और परशुराम जी हैं, परशुराम जी क्या थे पहले, मतलब क्षत्रिय थे तो उन्होंने ब्राह्मण थे तो उन्होंने क्षत्रिय का काम करा। तो वो क्योंकि वो ट्रांसेंड कर चुके हैं, गुणों से ऊपर है। या गुणों का बेसिकली अगर हम ब्रीफ सा आइडिया लेने के लिए कि गुण हमें कई बार समझ आता है कि जैसे 3 रस्सियां कठपुतली की तरह, जैसे 3 रस्सियां होती है ना, एक रजोगुण की, एक तमोगुण की और एक सत्वगुण की। तो जैसे हम देखते हैं कि गांव में या कुछ ऐसे सुबह सुबह उठते हैं लोग, तो कितना सात्विक सा, जो जैसे इवन जो विमेन है या मेन है, बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत सात्विक आचार विचार होते हैं, उसका प्रभाव उन पे पड़ता है। ये नहीं कि उसमें भी सब तरह के हैं, क्योंकि वो और भी गुणों के साथ एसोसिएट करते हैं। आप कैसा संग कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो, हर चीज वो हमें उस गुण के हिसाब से फिर हमारा वो, हम कठपुतली की तरह उसके परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं कि कोई सत्व गुण मल्टीप्लाइड बाय, जैसे उस तरह से सारे गुण आपस में भी मिलते रहते हैं। तो उससे बहुत सारे कॉम्बिनेशन और इतनी सारी तरह तरह की हम नेचर्स देखते हैं, इतने तरह तरह के लोग देखते हैं और इतनी तरह तरह के उनके एक्शंस देखते हैं। वो इसी वजह से होते हैं, एक्शंस बेसिकली इसीलिए होते हैं क्योंकि हम वो कठपुतली की तरह उसके कंट्रोल में काम करते रहते हैं। बट हम इन गुणों से निकल सकते हैं बहुत, इसी जन्म में रहते हुए वी कैन लर्न द आर्ट ऑफ ट्रांसेंडिंग, ट्रांसेंड मतलब इन गुणों को पार करना, शुद्ध सत्व में जाना। वो हमें भगवत गीता सिखाती है और ये एक स्ट्रगल है और हमारे लिए भी है। आज हम इतने साल हो गए हैं, पर हमसे बहुत बहुत साल पहले से भी लगे हुए हैं जो लोग, वो भी सबके लिए स्ट्रगल है। और पर बहुत लोगों को जब हम देखते हैं कि वो कितने अच्छे से वो कर पा रहे हैं ये सब, तो हमें बहुत उससे उत्साह हमारा बढ़ता है और हम भी खुद भी उसमें बहुत सारी चीजों में सक्सेस महसूस करते हैं। तो देन सब कुछ फिर हमारा विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है और हम फिर करना चाहते हैं। और तो इसमें एक जो लास्ट में भगवान जो बताते हैं 36 से लेके 43 करके जो श्लोक हैं, उसमें बेसिकली लस्ट के बारे में बताते हैं, कॉन्कर कैसे, हम लस्ट को कैसे कॉन्कर करें। या तो उसमें हम 36 की एक बार ट्रांसलेशन पढ़ो। श्लोक है उसमें, ये ट्रांसलेशन द ब्लेस्ड लॉर्ड 36 और 37 37 का श्लोक है, वो दोनों पढ़ो। ओके, 36 का ट्रांसलेशन है, अर्जुन सेड, ओ डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि, by what is one impelled to sinful acts even unwillingly as if engaged by force। इसका हिंदी में मेरे पास अभी भगवत गीता हिंदी वाली नहीं पढ़ी है, बट उसका अर्थ बेसिकली मतलब ये है कि कृष्णा से पूछ रहे हैं अर्जुन के ना चाहते हुए भी हम पाप कर्म क्यों करते हैं। मतलब ऐसा क्या है कि हमसे ना चाहते हुए भी हम सब इसमें शामिल है। हम में से कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि ओके, एटलीस्ट मैं तो नहीं कह सकती कि मुझसे कोई पाप नहीं होते। तो हम ना चाहते हुए भी क्यों करते हैं, तो उसका फिर कृष्णा आगे उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा
Mahashano Mahapapma Vidyenam Iha Vairanam. The blessed Lord said, "It is lust only, Arjun, which is born of contact with the material modes of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring, sinful enemy of this world." तो 36 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उनको लगता है कि मैं सारा कुछ करता हूँ, फिर भी उनके पास क्वेश्चन आ रहा है कि मैं प्रिस्क्राइब ड्यूटी करूँ, ये करूँ, फिर भी नहीं हो पा रहा, कई बार नहीं हो पाता। तो क्या है कि उसमें वो पूछते क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि हम नहीं करना चाहते, वी डोंट वांट टू डू इट। एक तो नहीं करना चाहते, और दूसरा जैसे कोई फोर्स से हमें करा रहा है, ये ऐसा क्यों है, उसका कौन वो मतलब क्या है। तो इसमें फिर भगवान उसके बेसिकली बताते हैं कि क्यों, मतलब उसका रीजन क्या है, कौन है, हु इज द कल्प्रेट, क्या है। तो वो 37 में बताया है कि 37 में कि काम द्वारा, रीड द ट्रांसलेशन वंस मोर। The blessed Lord said, "It is lust only, Arjun, which is born of contact with the material modes of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring, sinful enemy of this world." हाँ, सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो लस्ट है। पहले लस्ट होती है, हमें लस्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम एक उसको ले लें कि लस्ट का मतलब जस्ट हैविंग से फिजिकल रिलेशंस और इलिसिट मतलब रिलेशन विद द अपोजिट सेक्स, वो नहीं अकेला। स्ट्रॉन्ग डिजायर किसी चीज की भी जो अपने कोटा से ज्यादा, जो अपना कोटा, भगवान ने सबके लिए कोटा दिया है। कोटा का पर्पस क्या है, रेगुलेशन, कि अगर हम रेगुलेशन में रहेंगे तो धीरे धीरे चाहे उसका वो जो धन के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, किसी मनी के लिए हो, वो बिल्कुल। भी लस्ट है। हाँ, तो वो अगर हम कोटा के बियॉन्ड कुछ भी जाना चाहते हैं तो हमारी वो बेसिकली वो होता है ना ग्रीड, वो जो लस्ट मतलब उससे मतलब ये डिजायर पैदा होती है कि मैं सबसे ज्यादा कर लूं, किसी के पास कितना भी कुछ है, कितना भी कुछ है, वो उससे ज्यादा चाहता है और जाता है जाना चाहता है। तो क्यों, क्योंकि वो जो स्ट्रॉन्ग डिजायर पाने की हमारी इन मतलब वजह, हमारी कंडीशनिंग की वजह से है। क्यों कि जब हम स्पिरिट सोल हैं थे, मतलब है अभी भी स्पिरिट सोल हैं, जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे तो हम बिल्कुल 100% प्योर थे, भगवान के पार्ट एंड पार्सल उनके साथ प्योर थे। जैसे ही हमारा कांटेक्ट इस संसार के साथ, भौतिक संसार में आए, भौतिक संसार में हमारा कांटेक्ट हुआ, तो हमारे पे कंटेमिनेशन आ गई। उसकी वजह से हमारी डिजायर और एक्सप्लॉइट करने की, वहां पे प्रेम का, जैसे हमने कहा रिश्ता है सबका, यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन का है, हमारे को और चाहिए, तो वो लस्ट होती है। तो उसको जब पूरी नहीं होती, जब हम डिजायर, मान लो जिसको इतनी ज्यादा डिजायर हैं कि 100% पूरी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं होती, किसी की चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे मुकेश अंबानी भी हो, उसको भी आज डिजायर जो 100 कैसी हो कुछ होंगी जो अभी पूरी नहीं हो पा रही होगी, वो शायद वो कम्पीट कर रहा होगा वर्ल्ड में बाकी लोगों के साथ जो रिचेस्ट लोग हैं। तो फिर क्या होता है, जब पूरी नहीं आती तो उसका क्रोध आता है, इंसान को क्रोध आता है। तो लस्ट और एंगर जो सबसे बड़े एनिमी है, बहुत बड़े एनिमी है। तो क्रोध जब आता है तो इसकी बहुत सारी मतलब एग्जांपल्स हैं, जैसे रावण की एग्जांपल देते हैं कि रावण क्या था, उसके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन उसने बेसिकली ही वांटेड टू एंजॉय मोर देन हिज कोटा, उसको सब कुछ भगवान ने दिया, उसको जो जितनी तपस्या करी लॉर्ड शिवा से, उन्होंने इतने सारे बूंस लिए, लेकिन फिर भी उसको, मंदोत्री बहुत पायस उनकी वाइफ थी, सब कुछ थी, बट ही वांटेड सीता। तो वो उस वजह से उनका फाइनली क्या हुआ कि पूरी लंका जल गई। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि लस्ट जो इन चीजों को हम जब तक इसका क्या अरेंजमेंट नहीं करते या कुछ नहीं करते, इसको कंट्रोल नहीं करते, मतलब उसको हमें करना चाहिए। और दूसरी एग्जांपल इसमें और देते हैं कि दुर्योधन की, दुर्योधन में क्या था, उसके पास कुछ कमी थी, कोई कमी नहीं थी। और जब उन्होंने सबको निकाल दिया तो पांडवाज ने लास्ट में, वो क्योंकि बहुत ज्यादा वो थे, मतलब कृष्णा के अंडर थे, उनके मानते थे, भगवान को मानते थे, दे वर सेटिस्फाइड। उनको था कि हमारी जो नेचर है वो क्षत्रिय की है, तो हमको भीख तो मांग नहीं सकते, पर हमें तो रूल करना है, लेकिन आप हमें 5 गांव भी दे दो तब भी हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। पर दुर्योधन की वो स्ट्रॉन्ग डिजायर, लस्ट, जो भी कह लो, उसकी वजह से वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। तो इसलिए अल्टीमेटली क्या हुआ, दुर्योधन का यही हुआ। तो
इसको हमें क्या करना है बेसिकली कि उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, इन दोनों चीजों को भी, मतलब इसमें हम अगर स्पिरिचुअलाइज करा जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो चीज हमारे में बहुत सारे जैसे कई प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे एंगर की बात करते हैं, तो एंगर बहुत जो गुस्सा है, क्रोध है, वो आपको आता है, वो सबको आता है, लेकिन उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। मतलब एग्जांपल जैसे हनुमान जी की दी जाती है कि हनुमान जी में उन्होंने गुस्सा गुस्सा उनको भी आया था, पर कैसे आया था गुस्सा, किसके लिए? क्योंकि रावण के अगेंस्ट, लंका के अगेंस्ट उन्होंने लंका को जलाया। तो उन्होंने अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए या अपने कुछ पाने के लिए नहीं करा, भगवान की सेवा में लगा दिया, स्पिरिचुअलाइज कर दिया। तो हमें कई बार क्या होता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते ऐसी ऐसी जो डिजायर्स हैं, कुछ हैं, पर उनको भगवान की सेवा में चैनलाइज कर सकते हो, डब टेल कर सकते हो। तो उसमें बेस्ट बेस्ट वो होता है कि उसको भगवान की सेवा में लगा दो। तो बेसिकली उसमें की जो है, जो प्रभुपाद इसमें दे रहे हैं भगवद गीता के श्लोक में, कि जो हमारे अंदर रजोगुण का भाव होता है बहुत स्ट्रांग होता है, तो किसी तरीके से हम कोशिश करें कि वो तमोगुण में ना जाए, मतलब या तो ऊपर जा सकता है सत्व गुण की तरफ, या फिर नीचे जा सकता है। तो सत्व गुण की तरफ लेके जाना है, वही जो प्रभु जी कह रहे हैं कि हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं। उसका ये मतलब नहीं कि हम अपना सारा, चलो हमें क्रोध आता है तो हम भगवान की सेवा के लिए कोई बहाना ढूंढ के क्रोध करते रहें लोगों पे, वो मतलब नहीं है। तो वो तो जब जरूरत पड़े, हर किसी को नहीं करना है वो, तो अगर किसी को बहुत ही इमरजेंसी में जरूरत पड़े, वो हमें तो कोशिश करनी है कि ऐसा हो ही ना। तो हनुमान जी का तो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, बट अदरवाइज बहुत सारे तरीके हैं कि आप उसको वो डिवोटीज गाइड करते हैं हमें। जब आप और क्लासेस अटेंड करेंगे या भगवत गीता को और गहराई से समझेंगे, पढ़ेंगे, और गाइडेंस में और भक्तों के गाइडेंस में आप जब वो करेंगे उसको, तो आप धीरे धीरे आपको ये सारी कीज मिलेंगी, टिप्स मिलेंगी, और प्रैक्टिकल आप शेयर कर सकते हो कि हाँ मुझे ये मुश्किल आ रही है, तो आपको उसके बदले में गाइडेंस मिलेगी, एंड देन वी कैन ऑल उसको हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि, तो ये प्रैक्टिस है जिसको हमें करना है अपनी जिंदगी में, प्रैक्टिकली उतारना है। ये नहीं कि हम सिर्फ पढ़ें और उसको पहले समझें, ठीक है, पर फिर धीरे 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 समझ के हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपनी जिंदगी में Action. उतारें। तो मेन मेन यही है। उसके बाद भगवान जो अगले 2 4 5 श्लोकों में उसका बेसिकली अगर हमें लस्ट को करना है तो उसका तरीका बताते हैं कि कैसे, कहाँ सिटिंग प्लेसेस है, या पहले कवरिंग के बारे में बात करते हैं कि यहाँ भगवान मतलब लस्ट अर्जुन पूछते हैं तो कहाँ सिटिंग प्लेस क्या है, कहाँ होती है ये चीजें, तो वो बताते हैं कि इसमें माइंड, इंटेलिजेंस, सेंसेस, इसकी बात करते हैं। कृष्णा समझाते हैं कि वहां उनकी है, तो उनपे हम अगर वर्क करेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। तो उस इस चीजों के, पर उससे सबसे बड़ा जो मतलब क्या कहते हैं कि तरीका है कि जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, जहाँ हम जो ओरिजिनल हमारा जीव है, हम लोग जो सोल है वो इन तीनों से ऊपर है, सेंसेस, इंटेलिजेंस, माइंड, इन सबसे ऊपर है। अगर हम सोल को लगा लेंगे भगवान की सेवा में, अपने आप को लगा लेंगे, जीवा को, तो ये सारी ऑटोमेटिकली माइंड कंट्रोल हो जाएगा, सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगी, और सब कुछ कंट्रोल है। उसको सेपरेट एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसलिए जैसे मैंने पीछे बात करी कि इग्नोरेंट लोगों को भगवान कहते हैं कि अवॉइड करो, उनको छोड़ो, पर मर्स जो डिवोटीज हैं, भगवान के भक्त इतने मर्सीफुल हैं, वो उस मतलब रिस्क भी लेते हैं। मतलब उनको कहते हैं जाके जहां नहीं भी करना चाहिए वहां पे भी जाके उनको लगता है कि अपनी अपना क्या कहते हैं, अब उन गालियां खाने के लिए भी तैयार है, तब भी प्रीचिंग करते हैं। जैसे भगवान की, कृष्णा की कृपा से और प्रभुपाद की कृपा है ये कि उन्होंने सारे दुनिया भर में इतने सारे मंदिर स्थापित किए। तो इवन पाकिस्तान में और सब जगह प्रीचिंग चल रही है, वहाँ टेम्पल है और वो सब है, और कई इवन मुस्लिम कंट्रीज में भी है, जहाँ पे मंदिर नहीं बन सकते, वहां पे वो छुप छुप के अपने घरों में भगवत गीता पढ़ते हैं और अलग अलग तरीकों से उसको भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं। भगवान उनको पूरा संरक्षण देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा भी है, रशिया में बहुत ज्यादा मतलब उस पर बुक्स लिखी गई हैं कि कैसे कैसे डिवोटीज को उनको जेल तक में डाला गया और वो सब किया, पर उन्होंने कैसे भक्ति करी, इवन जेल में रह के भी उन्होंने कैसे किया, पूरा उसका वर्णन है। और तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर मतलब दुनिया भर में लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, क्योंकि हमारे तो देश से ये सब ज्ञान मतलब प्रभुपाद जैसे, हाँ, शुरू हुआ, लेके गए प्रभुपाद ऐसे दूसरे देशों में, और उन्होंने यहाँ तक कि जैसे
लंदन में एक बार उनको किसी ने पूछा कि आप क्या देने आए हो यहाँ पे, मतलब इंडिया के पास ऐसा क्या है, तो वो कहते असल में अंग्रेज चले गए थे तो वो सब कुछ ले गए इंडिया से, बट एक चीज जो सबसे कीमती थी वो नहीं लेके गए, मैं वो देने आया हूँ। और मैं हिप्पीज का मतलब जो वहां पे तब ड्रग्स का बहुत चल रहा था अमेरिका में, और वो सब जैसे आजकल तो सब जगह ही चल रहा है इंडिया में और सब जगह पूछो नहीं, तो वो तब वहां पे हिप्पी कल्चर बहुत चल रहा था कि बच्चे अपने पेरेंट्स से परेशान और उनको कुछ जवाब नहीं मिलते थे, चर्च बंद हो रहे थे और बच्चे मतलब उनको था कि हम कुछ करना है, हमें कुछ हायर, तो उस चक्कर में वो नशा करने लग रहे थे कि हमें कुछ पता नहीं इसी से हमें जागरूकता होगी, उनको लग रहा था, तो डिससेटिस्फाइड थे लाइफ में। तो वो कहते हैं मैं हिप्पीज को हैप्पी बनाने आया हूँ, तो मैं हिप्पीज को हैप्पी बनाने आया हूँ, इनको खुशी देने आया हूँ। तो ये फैक्ट्स भी हैं, अगर हम आप इसको गहराई से अगर देखेंगे तो दुनिया भर में हम भी जैसे ट्रैवल करते हैं, कई बार हमने कहीं गए बाहर या बाहर के देशों में, तो वहां पे आपने भी अगर कभी गए होंगे तो देखा होगा, या इवन इंडिया में, कि वहां पे कैसे किसी भी देश में चले जाओ वहां पे कई बार हरिनाम संकीर्तन सड़क पे हो रहा होता है, अंग्रेज या इंडियंस भी होते हैं कई बार, या कोई भी, वो सब हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे होते हैं, ताकि जो अज्ञान में लोग हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे आप सबको इंटरेस्ट है, आप तो भगवत गीता क्लास अटेंड कर रहे हो, तभी आप लोग, मतलब आपको सबको बधाई है कि आप सब लोग ये अटेंड कर पा रहे हो, क्योंकि आप पे भगवान की बहुत ज्यादा कृपा है, हर किसी पे उनके कर्मों की वजह से इतनी कृपा नहीं उनको मिल पाती, तो उनको भी भक्त जैसे कृपालु होकर वो जगह जगह ये आचार्य ने बोला कि जाके हरि नाम करते हैं, ताकि उनके कानों में हरे कृष्णा महामंत्र का जो स्वर है वो सुनाई दे, और उससे उनका शुद्धिकरण हो, और वो धीरे धीरे उनके अंदर उसका प्रभाव, इतनी शक्ति है उनको, उस शक्ति में इतना विश्वास है, तो इस पर्पज से वो सड़कों पे नाचते हैं और कीर्तन करते हैं। सिर्फ पर्पज यही होता है, वो अपने लिए नहीं करते, वो उनको फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं, सारी दुनिया को, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं, वो शॉपिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट उनके कानों में जा रहा है, इसलिए। हरे कृष्णा। तो ये बेसिकली हमारा भी 8:20 हो गए हैं, तो जो एक बेसिकली जो हम मतलब 10 मिनट हैं, तो उसमें हम चाहेंगे कि अगर जो आइडिया था कि हम इंटरेक्टिव बनाए, इसलिए हमने 10 मिनट पहले ही खत्म करा, कि आप टेक होम बेसिकली हम पूछना चाहते हैं कि क्या आपको ले जाना चाहते हैं, या क्या बेसिकली आप इसमें से ये जो 2 सेशंस दो हुए, सेशन हुए आज या कल में, या इसमें हमें एक दो चीजें भी हमें जो छू जाएं, कुछ भी अपने हार्ट को छू जाती हैं कि अच्छा लगा, ये हम कर सकते हैं, उसको अगर फॉलो कर लो, जैसे हम डिवोशनल सर्विस की बात करते हैं कि इट्स एन एक्टिविटी भगवान के लिए, हम भगवान के भक्त कभी सुस्त नहीं होते। बहुत सारे लोगों को इंप्रेशन है कि ये शायद काम ही नहीं करना चाहते थे, आलसी हैं, पर वो 4 बजे उठ के या 3 बजे उठ के ले रात के 11 बजे तक वो पूरा बिजी रहते हैं उनका भगवान की सेवा में, और वो सारे लोगों को, जो बाकी लोग हैं उनको, उनका पर्पस होता है कि वो जल्दी से जल्दी उनको अपने भाई बंदे, क्योंकि सारे भाई बंधु हैं उनके, सारे भगवान के बच्चे हैं, तो उनको वापस ले जाना चाहते हैं, तो उनके लिए काम करते हैं, तो भगवान से इसलिए जोड़ना चाहते हैं। बेसिकली। तो मतलब वो तो क्या कि ह्यूमन बींग्स नहीं अकेले, इवन कोई भी एनिमल्स, सबके लिए, क्योंकि वो भी सोल है, आत्मा है, तो उनको भी हेल्प करना चाहते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो आप प्लीज शेयर करिए, स्पेशली जो नए लोग हैं, या कोई जो क्वेश्चन पहली हो। बार जिन्होंने अटेंड किया है, वो जरूर बताएं, और कुछ उनके कोई प्रश्न है तो वो भी आप पूछ प्रश्न, सकते कुछ हैं। क्वेश्चन हो पूछ सकते हो प्रभु जी, जी। आज की डिस्कशन में एक चीज बार बार आई कि हमें वो चीज करनी चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। Am I right? This is what I could understand in most of the time. सॉरी थोड़ा सा आई कुडंट गेट इट, दोबारा प्लीज बोलिए। आज की डिस्कशन में एक चीज बार बार आई कि जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें वो करना चाहिए, वो जो करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। या इन अदर वर्ड्स, जो दूसरी डिस्कशन आई आज की मीटिंग में वो ये आया कि हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे कि हमें पाप लगे। आई थिंक दिस आर द टू थिंग्स व्हिच आई कुड अंडरस्टैंड बिसाइड्स अदर। इसमें गॉट इट मैंने ना, जब से मैंने ये भगवत गीता को थोड़ा पढ़ना शुरू किया, थोड़ा आपसे मुझे ज्ञान मिलना शुरू हुआ है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हमेशा मैं फंसा रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो महाभारत का होने का मेन रीजन ये था कि कौरवों ने पांडवों के अगेंस्ट कुछ इनजस्टिस किया, मेन रीजन। ठीक है, अब इसके लेके मैं, अगर कोई मेरे साथ इनजस्टिस करता है, कोई मेरे को हार्म पहुंचा रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, अब मैं उसके अगेंस्ट एक्शन लेने से पहले 10 बार ही सोचता हूँ कि मैं एक्शन लूं नहीं लूं, मैं क्यों एक्शन लूं, भगवान अपने आप एक्शन लेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अब मैं फेस करता हूँ,
मेरे सामने कोई इंसेक्ट्स आ जाता है, उसको मैं स्प्रे करना चाहता हूँ, स्प्रे करने के बाद मैं सोचता हूँ कि तो मर जाएगा बिकॉज ऑफ मी, कि मेरे को पाप ना लग जाए, और मुझे पता है अगर मैं स्प्रे नहीं करूंगा कि तो मेरे को हार्म पहुंचाएगा, तो या मैं सोचता हूँ भगवान अपने आप आएंगे उस पर एक्शन लेंगे। तो मैं थोड़ा इसमें बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है कि जो आदमी हमारे साथ गलत काम कर रहा है हम उसको चुपचाप देखते रहे, बियर करते रहे कि भगवान अपने आप उसको दंड देंगे, या कोई इंसेक्ट्स आ रहा है हम सोचते हैं हम इसको क्यों स्प्रे करें, हमारी वजह से मर जाएगा, हमें पाप लग जाएगा। ये दो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि पहली बात तो जो आपने इंसेक्ट की बात करी है, आप कोई अटैक करने की कोशिश करता है, तो सबसे ज्यादा जो डिवोटीज या सीनियर डिवोटीज बताते हैं उनका ये है कि अगर मान लो हम कॉकरोचेस की बात करते हैं, इंसेक्ट्स की बात करते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रिवेंशन, बेसिकली हमें मान लो अपने घर को इतना साफ रखना चाहिए कि कॉकरोचेस ना आए, या जो इंसेक्ट्स की या जाली के दरवाजे लगाओ या कुछ करो, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो लिविंग एंटिटीज हैं, वो भी भगवान के बच्चे हैं, तो हमें जितनी ज्यादा कोशिश कर सकते हैं वो करनी चाहिए। पर इसके साथ साथ शास्त्र जो बताते हैं उसमें ये भी है कि कुछ एक्टिविटीज के लिए वो उसमें मतलब अगर आप करना भी पड़ता है तो पाप नहीं होता, पाप नहीं लगता। जैसे उसमें कोई आपके घर को आग लगाने आ गया या घर पे आपके अटैक करने आ गया, तो यू कैन रिटेलिएट, यू कैन किल देम, तो उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। तो बेसिकली जहां तक हो सके, मान लो जैसे हमने कॉकरोचेस की या इंसेक्ट्स की बात करी, तो आपको हमें इनसे बचना चाहिए, और उसके तरीके डिवोटीज तो निकाल लेते हैं, मतलब आज जो जो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, पर आई नो समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट, तो उसमें मतलब मुझे लगता है कि अगर बहुत ही मजबूरी है तो देन इट्स डिफरेंट, बट कायदे से नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से नहीं करना चाहिए। Any other question? और कोई क्वेश्चन? अभी एक दो क्वेश्चन चैट में भी हम फिर वो भी ले लेते हैं, अगर कोई और कुछ है। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा माता जी। Can I ask something? सॉरी। Hello. हाँ जी हाँ माता जी बोलिए। हाँ, मेरा ये सवाल था प्रभु जी। हेलो। जी 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 बोलिए, सुन रहे हैं माता जी। हाँ, जो जैसे प्रभु जी हम लोग के घर में जो प्रसाद बनता है, प्रसाद तो नहीं बनता है क्योंकि हम लोग उसमें हम लोग जॉइंट फैमिली में तो ओनियन गार्लिक उसमें यूज होता है। जी। तो ऐसे स्थिति में हम लोग भगवान को कैसे भोग लगाए? भगवान को तो सात्विक भोजन लगता है ना, तो फैमिली में सब लोग ओनियन गार्लिक खाते, नॉन वेज नहीं खाते हैं हम लोग, और ओनियन गार्लिक यूज होता है। माता जी उसमें ना ये जो चैलेंज है बहुत लोगों को आता है, बहुत लोग फेस करते हैं, और उसका भी सोल्यूशन है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। पर साथ में ये भी बोला जाता है कि अगर आपको फैमिली में, जब तक आप फैमिली को साथ लेके नहीं चलोगे, अकेले, जैसे कई लोग बहुत कट्टर हो जाते हैं और शुरू में जैसे आके लड़ना शुरू कर देते हैं कि मैं तो किसी को खाना नहीं मिलेगा जब तक कोई दूसरा अगर मेरे को कॉपरेट नहीं करेंगे, मैं भोग लगाना है, मुझे ये करना है, तो ये नहीं होगा। डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी, हमें वो नहीं करनी। वो धीरे धीरे, जब तक क्या है ना कि रिलेशन ये प्रेम का रिलेशन है, घर के साथ भी अगर उनको साथ में कॉपरेशन के साथ चलोगे, फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, तो आप लॉन्ग टर्म में भक्ति कर पाओगे। तो अब शुरू में ऐसे कर सकते हो कि जैसे आप मान लो फैमिली के लिए अगर मजबूरी है, नहीं कुकिंग करनी पड़ रही है आपको विद अनियन गार्लिक, तो उसका भोग नहीं लगाइए, पर आपके पास हमेशा चॉइस है। आप कुछ फ्रूट, कोई नट्स, कोई परांठी बना ली, कुछ बना ली, दही के साथ लगा दी, तो उसमें तो अनियन गार्लिक का सवाल नहीं है। उसमें तुलसी का आपको बेसिकली तुलसी ऐड करनी पड़ती है, तुलसी का एक पत्ता ऐड करो और भगवान को भोग लगा दो। और उसमें ये भी है माता जी की दीपिका जी कि जी। बहुत सारे तरीके होते हैं उसके कि बहुत सारी चीजें तो हम प्याज की नहीं खाते हैं, वैसे भी जो लोग प्याज खाते भी हैं तो कितना कितना कुछ है, सूखी सब्जियां या कुछ और उसके अलावा आप ट्राई भी कर सकती हैं बिना प्याज के बनाने की। जैसे आजकल तो लोग हर चीज नए ढंग से ट्राई करने की कोशिश करते हैं, हम ये बनाएं वो बनाएं, तो वो किसी को पता भी ना चले। अगर उनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है प्याज लहसुन से फिर नहीं करिए, बट अगर नहीं तो आप कभी कभी ट्राई कर सकती हैं कि हाँ उसको बनाया और सबको खिलाया और उनको अगर अच्छा लग गया तो फिर अगली बार फिर ट्राई कर लिया। बिना प्याज लहसुन के भी बहुत अच्छे से सब कुछ तो बन जाता है, पिज्जा पास्ता तक बन जाते हैं।
तो ये तो चीज ही क्या है। तो मतलब नॉर्मल इंडियन फूड तो हमारा आराम से बन जाता है, इवन राजमा चने सब बहुत स्वादिष्ट, आपने मंदिर में कभी खाया होगा या भक्तों के घरों में कभी आपको मौका मिला हो तो बहुत ही बढ़िया बनता है। मलाई कोफ्ता कुछ भी बना लो, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ। सो बट अदरवाइज कुछ ना कुछ जैसे, और या फिर वही है कि फ्रूट्स और वो सब, और अपने अंदर इच्छा रखिए कि भगवान मैं आपको भोग लगाना चाहती हूँ, और आपको अंदर से जब फील होगा कि हाँ, तो भगवान अपने आप अरेंज करेंगे। वो उनको चाहिए ना, तो वो जो सारी सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं। ये किसी भक्त ने हमें बहुत पहले, मेरी एक जो फ्रेंड है उनको बोला था, उनका सेम, उनका तो क्वेश्चन था, क्योंकि वो कश्मीरी ही और अब उनकी दीक्षा वगैरह हो गई है, बहुत भक्ति कर रही हैं, तो उनका ये क्वेश्चन था कि उनके घर में सब नॉन वेज खाते थे, और तो वो कहती थी कि मैं कैसे करूं, और बहुत परेशान थी। तो उनको यही बताया कि जो भगवान सारी सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या वो आसपास के आपके 4-5 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते? उस तरह का विश्वास अपने अंदर आप लाइए, तो धीरे धीरे स्टेप स्टेप करके वो भगवान अरेंज करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो सिर्फ इच्छा रखनी है और छोटी छोटी कोशिश करनी है, बट डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करनी है। क्योंकि जो लोग अभी उस के लिए तैयार नहीं है, उस पर अगर जबरदस्ती किया जाए तो उनको, वो भगवान से और दूर हो जाएंगे। तो वो हमें नहीं करना है। तो हमें उनको धीरे 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 धीरे, पहले अपने अंदर चेंज आएगी और इच्छा आएगी होगी, तो भगवान अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। क्योंकि उनको एक बार आदत पड़ गई आपके हाथ से पाने की, तो वो कहेंगे अब मुझे वो भी चाहिए, अब मैं कैसे करके वो अरेंज करवाएंगे आपसे कि आपको, आप कर पाए। आप खुद ही देखिएगा ये। और बहुत बार होता है आपकी फैमिली भी ऐसे कोऑपरेट करनी अपने आप शुरू हो जाती है, जब देखती है कि मैं, बच्चे देखते हैं, हस्बैंड देखते हैं कि कितना स्ट्रगल कर रही है, इनको मतलब हमारे लिए अलग से बना रही है, उनके लिए भगवान के लिए 1-2 चीजें बना रही है कुछ, तो 10 दिन 20 दिन बाद बेटा बोलेगा, बेटी बोलेगी मम्मा आज कोई बात नहीं, आप बिना प्याज के बना लो, मैं भी खा लूंगी। तो हस्बैंड नहीं मानेगा, पर 10 दिन बाद वो भी कभी हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं बोल रहे, ये होता है, बहुत होता है। और हम जो, अगर आप प्रेम से करोगे, भगवान फैमिली के साथ बहुत प्रेम का रिश्ता है, तो प्रेम के लिए कुछ भी फॉलो करने को, लोग सैक्रिफाइस छोटी मोटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर आप ये नहीं मान के चलो कि जी मैं तो 4 दिन से मैं वेट कर रही हूँ, मैंने ऐसे करा तो मेरे को किसी ने पेशेंस, बताया नहीं। पेशेंस पेशेंस रखना रखो, पड़ेगा। आपको साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, ज्यादा लग जाए, आप सोचो भगवान का जो, जैसे जब इच्छा होगी मेरा हो जाएगा, पर अपनी डिजायर और कोशिश करते रहिए। मेरा भी मेरा एक और एक प्रश्न था एक्चुअली। हाँ जी। जी जी चलिए आप पूछिए। जी, प्लीज बोलिए। दीपिका जी आप पूछ लीजिए पहले। थैंक यू मैम। मैंने कभी भोग नहीं लगाया, क्या आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं तरीका कि कैसे भोग लगाते हैं भगवान कृष्ण को? मेरा भी एक्चुअली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। पहले जैसे मैंने थर्सडे के फास्ट किए थे विष्णु बात भगवान करूंगी। के, तो सॉरी, हम आपकी आवाज जो खाते थोड़ी सी थे, आने आई थिंक दोनों के माइक्स ऑन है। हाँ जी। मैंने एक्चुअली थर्सडे के फास्ट किए थे विष्णु भगवान के, तो मैं गुड़ चने का भोग लगाती थी और हम चरणामृत बनाती थी। तो जैसे गुड़ चने का भोग लगाया तो थोड़ा सा गुड़ चना मैंने पूजा की प्लेट में रख दिया, भोग लगाया पूरी कटोरी से, और बाकी का प्रसाद बच्चों को बांट दिया, खुद खा लिया। और वो गुड़ चना नेक्स्ट डे क्या किया, वो चिड़ियों को या फिर पौधों में कहीं पर रख दिया कि चींटी वगैरह खा ले। पर हम जब रोज का भोग लगाएंगे वो कैसे लगाएं, कैसे भगवान को खाना प्रेजेंट करें, और उस रखे हुए खाने का क्या करें नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट टाइम उसको वहां से जब मंदिर में से हटाएंगे तो उस खाने का हम क्या करें? मतलब ये, वो तो एक्चुअली सबसे बड़ी चीज है कि वो, उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है, वो तो नेक्टर है। आप उतना लगाओ, अगर आपके लगता है कि आपको, वैसे तो जो चींटियों को या बर्ड्स को या कुछ देते हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी प्योरिफिकेशन होती है, जो हम बच जाता है कभी, हम मतलब डिवोटीज भी डालते हैं। पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज है भगवान से भोग लग के आया, इवन वो ठंडा भी हो गया है, कुछ हो गया, तो उसको खुद ऑनर करिए, पाइए, खुद लीजिए, अपनी फैमिली को दीजिए। गुड़ चना है या जो मुझे पराठे लगा कि नहीं बनाते खा हैं, सकते, भगवान को ऑफर कर दिया तो वो हम कैसे खा लें, नहीं तो नहीं, दैट्स व्हाई प्रसाद है, नहीं कृपा है। खाया। प्रसाद तो कृपा है, हाँ, मर्सी है। भगवान जो देते हैं वो तो, डिवोटी तो 24 घंटे में, वो तो उसके बिना कुछ लेते ही नहीं है। भगवान जो सबसे बड़ी प्योरिफिकेशन होती है कि अगर आप अपनी टंग को कंट्रोल कर लो, डिवोटीज एक्सप्लेन जीवा। करते हैं, जीवा को कंट्रोल कर लो। दो काम है, जीवा के दो काम है। एक, भगवान का नाम लेना, कीर्तन करो या हरि नाम, भगवान की भगवान चर्चा के करो। चर्चा करो, जो कुछ करो। दूसरा, प्रसाद पाओ। प्रसाद का मतलब जो भोग लग गया, भगवान को भोग देते हैं, फिर जब भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद तो आपको लेना ही चाहिए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो सबसे बड़ी चीज, बढ़िया चीज है, और खाना चाहिए आपको। भगवान का भोग सिर्फ हमने शुद्धि के लिए नहीं लगाना है, भगवान का भोग बेसिकली भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाना है कि भगवान आपने हमें ये सब दिया है, तो मैं आपको क्योंकि इट्स लाइक बीइंग अ थीफ,
कि हमारे घर में कोई हेल्प है, या तो वो हमारे घर में काम कर रही है, तो वो अगर खाना बनाए और वो खुद खा जाए और हमें नहीं दे, तो कैसा होगा? जो घर के मालिक हैं अगर उनको नहीं दे, तो उसी तरह भगवान जो हम सबके परम पिता या मास्टर हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हैं, संपूर्ण भगवान है, तो उनको अगर हम नहीं अर्पण करते, तो जैसे भगवत गीता में कहा है कि हम पाप खा रहे हैं, तो अगर भगवान को हम भोग लगाएंगे, इतनी सिंपल सी चीज है कि उसमें तुलसी डाली, हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोला और घंटी बजा के उनको, बस ये है। और जो विधि मतलब बताई गई है, तो उसको उनको भोग लगाइए, जो भी खाना है, इवन पानी। और हम ये सोचें कि अगर किसी के घर में भगवान जैसे ठाकुर जी भी होते हैं, तो कहते हैं कि वो खड़े रहते हैं, वो भगवान क्योंकि अपने भक्तों पे निर्भर डिपेंड करना पसंद करते हैं। तो अगर वो घर में ठाकुर जी आ गए, तो वो खाते ही नहीं, वो खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं कि भगवान अपने लिए अरेंज नहीं कर सकते, भगवान तो कर ही सकते हैं, पर वो अगर किसी भक्त के घर में अगर कोई भक्त ले आया उनको घर में, तो वो खड़े रहेंगे, वो भूखे खड़े रहेंगे जब तक उनको नहीं दोगे, भूखे बैठे रहेंगे। उनको हम फिर देंगे, कह रहे भगवान भूखे हैं तो हम उनको दें, तो इसलिए हम उनको अर्पण करते हैं, उनको प्रेम से भोग लगाते हैं। ये भी एक स्ट्रगल है हमारी सबकी, हम क्योंकि हमें आदत नहीं है ये सब करने की, तो धीरे 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 जो सही तरीका है, क्यों होता बहुत कुछ है, क्योंकि हमारे देश में सब लोग बचपन से उसी माहौल में पले हैं बहुत, और बहुत लोगों ने बहुत कुछ देखा है, पर कई बार हमें सही तरीके नहीं पता होते, तो वो सही तरीके धीरे धीरे, और इसके मंत्र भी होते हैं जो बोलना है, सिंपल से मंत्र होते हैं, एक बच्चा भी याद कर सकता है, वो भी धीरे धीरे आप डिसाइड कर सकते शुरू में सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र 3 बार बोल के लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम। भगवान को तो बेसिकली आपका भाव देखते हैं, बाद में अगर लगा सको, ऐसा नहीं कि हमें मंत्र को नहीं करना, वो भी करना है, लेकिन उसके लिए टेंशन नहीं रखनी। पहले शुरू में भगवान को अपना प्रेम बांटिए, बस प्रेम दीजिए उनको, भोग लगाइए 3 बार भगवान का जो हरे कृष्णा मंत्र है, इसको जो आपको शायद पता ही होगा, नहीं तो आपको ले सकते हो, उसको हम आपको भेज भी सकते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कहीं भी मिल जाएगा आपको, इस्कॉन की साइट से, या वैसे भी आपको मिल जाएगा, हम व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वो लगाना है बस, उससे फिर बाद में धीरे धीरे अपने आप शुरू हो जाएगा प्रोसेस। और सबसे बड़ी चीज है, अगर आपकी इच्छा है तो आप एसोसिएशन को सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। संघ अगर है तो आप कितने भी, हम लोग किसी भी लेवल पे हैं, छोटे से छोटे लेवल, कम से कम मतलब बिल्कुल नहीं है, तब भी बड़े से बड़े भक्त बन सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े से बड़े भक्त भी हो, अगर 4-6 महीने, साल 2 साल आपके किसी भक्त की एसोसिएशन नहीं है, तो आप फिर वो चांसेस एंड डर रहता है कि वो आप मटेरियल एक्टिविटीज ना करने लगे हो। इसलिए सबसे बड़ा है कि आप कनेक्ट करो, मंदिर के साथ कनेक्ट करो, किसी लोगों के साथ करो, उनसे जितना भी हो सकता है वो घर पे बैठ के बाकी सेवा करो, भगवान की जैसे भोग लगाना या करना, पर साथ साथ उनसे इंटरेक्शन करो, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आई होप इससे कुछ आपको ठीक लगा, मतलब कुछ ऐसा सेटिस्फाई हो, नहीं तो मे बी वी कैन ट्राई अगेन और आस्क समबडी। और कोई क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? बाकी तो हम सॉरी, आशा जी, आपको किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट भी हो, यू आर मोस्ट वेलकम। कुछ बताना चाहे, जैसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करी कि अगर आपने क्या बेसिकली कुछ क्या छुआ आपको जो इस चैप्टर से प्रभुपाद जो कह रहे हैं उनमें से, जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहोगे, या आप अपने साथ ले जाना चाहोगे और उस पे मनन करना चाहोगे, तो यू कैन शेयर, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर, अदरवाइज आल्सो इट इज ओके। Ma'am, I want to share that from today's lesson we learn that what is bhakti yoga and how can we practice yoga in our day-to-day life, by offering food to God or by chanting the holy names. For me, these tools are the basic 2 points from today's lesson I learned. You have catched the essence. Thank you, ma'am. भगवान को भोग लगा के सिर्फ प्रसाद ले सकते हो, जितना भी लगा सकते हो। नहीं मैम, मैं एक दो चीज पहले तो मैम कभी किया नहीं, जब आज के क्लास के बाद मैं एक दो चीज करूंगी, एक चैंटिंग और दूसरा भोग तो कभी लगाया नहीं मैम। भोग जैसे लगाते हैं तो फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तुलसी का पता डालिए और आप किसी भक्त से
के संपर्क में आके उनसे समझ सकते हैं। नहीं अगर- मैम, हम लोग एकादशी का फास्टिंग रखते हैं, तो तुलसी का पूरा 2-4 पेड़ मैंने प्लांट मैंने लगाया हुआ है। वो भगवान कृष्ण, ऐसे मैं कृष्ण को तुलसी ऑफर करती हूँ। ठीक है। लेकिन कभी जैसे कुक फूड भोग लगाता है ना, वो मुझे डर था, क्योंकि हम लोग ओनियन गार्लिक खाते हैं ना। और हमारे मंदिर के जो पुजारी है, एक्चुअली मैम मेरे पास भगवान कृष्ण के एक पत्थर की मूर्ति है जो मैं लाई थी, लेकिन कभी मैंने डर के पूजा नहीं करती। तो हमारे मंदिर के जो पुजारी है वो बोल रहे थे, क्योंकि हम लोग ओनियन गार्लिक खाते हैं ना, तो वो बोले आप कर नहीं सकते। तो मेरे पास वो मूर्ति है। मैं डर के मारे मैम पूजा नहीं कर पाती, लेकिन आपकी बात सुन के मुझ में हिम्मत आ रही है कि I think ये भगवान आपसे खुद ही आई थिंक करवा रहे हैं। नहीं, मैं 5 साल हो गए मैम। मुझे भगवान कृष्ण की मूर्ति एक अच्छी लगी थी भुवनेश्वर से, इस्कॉन टेम्पल से। वो मैं खरीद के लाई, लेकिन बस आज ये 100 पीस रखा है, कभी उनको पूजा नहीं की। डरता जब था पूजा कि- करोगे तो वो प्रेम से अगर आपका रिलेशनशिप बन जाएगा, हाँ। उनसे पूजा करोगे तो फिर भगवान वो पत्थर की मूर्ति नहीं रहेंगे। अभी जो आपको लगता है ना, तो वो नहीं, एक्चुअली साक्षात आपके साथ आदान विग्रह प्रदान करेंगे। विग्रह बना विग्रह है, भगवान के मतलब वो विग्रह। आपको आप आदान अर्च प्रदान विग्रह। करेंगे, अर्च विग्रह के रूप में। आपकी बातों से सर हिम्मत लगी, क्योंकि हम लोग ओनियन गार्लिक खाते हैं ना, तो बहुत डर था कि नहीं, नहीं, आप कैसे हम भी करेंगे। खाते थे, हम भी खाते थे, और ऐसा नहीं है। तो नहीं, एक्चुअली मैम मैं आप इस्कॉन ऐसा- के एकादशी भी हम लोग मैं नहीं रखती थी, पर फिर एक लास्ट 1 ईयर से मैं रख रही हूँ। अमंग लीला जी का एक वीडियो सुना था ना, वो मुझे बहुत मैंने अच्छा लगा था, व्हाई शुड वी टेक एकादशी। जी जी। तो लास्ट 1 ईयर से मैं कर रही हूँ, लेकिन ठाकुर जी की पूजा मैं नहीं करती। मेरे पास बस तस्वीर है, लेकिन भोग भी नहीं लगाती थी, क्योंकि डर था कि हम लोग तो नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन ओनियन गार्लिक खाते हैं। आप तस्वीर को भी भोग लगा सकते हैं। भगवान की तस्वीर है तो उस वहां पे आपके मंदिर में रख के और उनको भी भोग लगा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली वैसी मतलब तस्वीर जो पिक्चर भगवान की Especially अगर- जहाँ पे हाँ। भोग लग रहा हो, जैसे इस- मान लो किसी इस्कॉन मंदिर में जहाँ पे रोज सेवा होती है, 3 टाइम 4 मतलब पूरा दिन 24 घंटे सेवा होती है, तो उस मान लो जैसे राधा श्याम सुंदर है, इस्कॉन वृंदावन में है या दिल्ली में है, जहाँ भी आप रहते हो उसके आसपास, या फिर आप उड़ीसा में हो बादशाह या यहाँ जहाँ पे- भी हो, तो आपको इस्कॉन मंदिर से अगर उनकी नॉर्मल पिक्चर की जगह अगर वो पिक्चर लाओगे तो उसमें पोटेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां सेवा हो रही है भगवान की जितनी ज्यादा सेवा होती है उतना ज्यादा और रेसिप्रोकेट करते हैं वो। जी, नहीं मेरे पास इस्कॉन के ही है, भुवनेश्वर में जो इस्कॉन टेम्पल है ना, हाँ जी, तो हाँ जी। वहां से मैं लाई थी। मूर्ति भी सर जी वहीं के है, लेकिन सब लोग बोलते हैं ना मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो मैंने बस उनको रखा हुआ है कान्हा जी को। करने कभी में कोई वो नहीं, पर वो गाइडेंस में करनी चाहिए। गाइडेंस में करनी तो चाहिए, पर डर नहीं, मतलब डर ऐसे नहीं होना हाँ, चाहिए। हाँ जी। प्रेम का रिश्ता है भगवान कुछ के साथ। गलत कर देंगे हमारे साथ। जो हमारे मंदिर के जो पुजारी है ना, उन्होंने मना किया कि आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो तस्वीर है वो भी इस्कॉन की है। ठीक है, ठीक बढ़िया है, है। बढ़िया बढ़िया। जी, थैंक यू। और किसी का कुछ है नहीं तो एक आधा क्वेश्चन जो चैट अच्छा, में एक क्वेश्चन है मेरा सर। जी जी प्रभु जी बताइए। ऐसा है कि अगर कोई ये सोचे अहंकार से कि मैं जो करता हूँ वो मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता है, तो उनसे कैसे डील किया जाए? उनसे आदमी कैसे डील करे? ऐसा है कि आप मतलब किसी और की जिससे आप डील करते हो वो सोचे। हाँ हाँ, तो वो basic- सोचते हैं कि मेरे से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, और मैं जो भी करता हूँ उससे वो असंतुष्ट रहते हैं, तो उनसे कैसे डील करना चाहिए? नहीं, उसके आपको डील करने की जरूरत नहीं है। आप तो उनके लिए प्रे कर सकते हो, उनके लिए भगवान को प्रार्थना कर सकते हो कि भी ये जो मतलब थोड़ा सा मतलब जो भगवान के बेसिकली भगवान को नहीं मान रहे, जो अगर मेरे से कोई अच्छा नहीं कर रहा सकता तो मतलब वो उनको फेथ नहीं है भगवान में भी। वो धीरे आपके लिए, अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड हैं, तो उनके लिए प्रे करिए, या कोई भी किसी के लिए प्रे करिए, पर हमें खुद उसमें नहीं फंसना। मतलब हमें जब रियलाइजेशन हो जाएगी तो हमें उन पे कोई बैर भी नहीं रखना, या कोई ऐसे सोचना भी और गलत है। हमें अपना कर्म करते रहना है कि नहीं? हाँ, अपना कर्म करना है। और कर्म क्या करना है, जैसे हमने बोलते हैं कि जी, लोग बोलते हैं बस वो इंटरप्रेट अपने हिसाब से कर लेते हैं। कृष्णा ने कहा भगवत गीता में कर्म करो, वो जो कुछ भी करते हैं उसको कहते हैं बस जस्टिफाई करते हैं। वो नहीं है जो हमने जैसे डिस्कस करा कल से, ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, और स्पेशली उसके बियॉन्ड भी जो इवन शास्त्रों के मतलब जो भगवान की बाकी सारे जो लैडर को छोड़ के अगर डायरेक्ट भक्ति में जा सकते हैं, वो सबसे आसान है, उसमें लगना चाहिए। और किसी के अगर मान लो कई बार कोई बॉस है आपके, वो जो कहते हैं, या किसी के बॉस हैं वो कहते हैं कि जी मैं मेरे से ऊपर कोई नहीं, तो आपको उनसे गुस्सा आता है, वो आता है,
तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें जैसे अटैचमेंट की हम कहते हैं ना, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, अवर्जन भी नहीं होनी चाहिए। अवर्जन को मतलब किसी से नफरत भी नहीं करें, उससे भी हम अटैच होते हैं, दोनों ही बुरी हैं। तो इसलिए अपने को सोचो कि वो भी भगवान के बच्चे हैं, मैं भी भगवान का बच्चा हूँ, ठीक है, आज उसकी किसी वजह से वो नहीं कर पा रही है, ऐसा सोच है, तो भगवान के लिए उनके लिए प्रे करो, उनको तो बुद्धि हमने मिलेगी, उनको बुद्धि मिलेगी। उसकी मतलब ये आप हम सब समझते ही हैं, ये तो बेसिक सी वैसे भी अदरवाइज भी, कि हमने उसकी प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है। मतलब अगर हम कम नहीं कर सकते तो उसको ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, ऑलरेडी उसकी प्रॉब्लम बहुत है, तो ये उसकी नहीं, एक्चुअली हम सबकी प्रॉब्लम है कि हम कहीं ना कहीं हम सब लोग ये सोचते हैं कि मुझे सब पता है। ये तो हमारी जन्मों जन्मों की प्रॉब्लम है, किसी की थोड़ी ज्यादा है, किसी की थोड़ी कम है, तो इसलिए वो फिर ईगो क्लैश भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, अहंकार। और बट अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं, वही गीता में जो बोला गया है कि प्रकृति जो है, प्रकृति ही सब कराती है। एक्चुअली कोई ये सोचता है कि मैं करता हूँ, ये चीज तो गलत है। मटेरियल नेचर पर भी वो किसकी डायरेक्शन में कराती है, वो हमें सबसे ज्यादा वो समझना है कि वो भगवान की ही डायरेक्शन में कर रही है, उनके भगवान की मतलब अंडर है, वो शक्ति है। जैसे 3 शक्तियां होती हैं भगवान की, जो पोटेंसीज हैं, तो उसमें से ये है जो मटेरियल जो एनर्जी है वो करवाती है। जी ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन है चैट में, जिसमें माता जी ने किसी ने लिखा हुआ है कि हमें बोला गया किसी सेशन, पिछले सेशन में या पिछले वीक में हुआ हुआ कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, तो फ्यूचर का ध्यान नहीं रखना चाहिए, या कुछ है, या पास्ट का नहीं करना चाहिए, तो ऐसा क्यों है? तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो उसमें यही है कि ठीक है, हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, भगवान भी ये कहते हैं प्रेजेंट में रहो। और अगर आप सबको आइडिया है या नहीं है, सबको बहुत लोगों को पता होगा कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो बहुत क्या आध्यात्मिक संसार है, वहां टाइम होता ही नहीं है। अब इमेजिन करो अगर टाइम ही नहीं होगा, मतलब तो प्रेजेंट में ही है, दैट मीन्स कोई भी वहां पे कोई बुढ़ापा नहीं आ रहा। जो 16 साल के लोग हैं तो 16 की रहेंगे हमेशा के लिए, जवान ही रहेंगे। तो टाइम में प्रेजेंट में रहने की इंपॉर्टेंस कितनी है। बट एट द सेम टाइम जो हम समझते हैं कि हमारी इनसिक्योरिटी सबकी होती है, कि अगर हम जो उनका माता जी का शायद क्वेश्चन इसलिए होगा कि हम अगर फ्यूचर का मतलब अपने अरेंजमेंट्स ही नहीं करेंगे, कि मेरे को आज से अपनी सेविंग्स नहीं करेंगे या कुछ ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारा 20 साल बाद या 10 साल बाद अपनी हमारा कौन ध्यान रखेगा? तो वो हमें वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। उसका पर्पज है कि देखो, 2 तरीके हैं। एक तो आप आज बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे रेनंसिएशन की बात करी हमने, इसमें करके छोड़ दिया जी मैं तो आगे एक भी पैसा नहीं जोड़ूंगा, भगवान पे डिपेंड करूंगा 100%। वो बहुत बढ़िया है। अगर आप रियल तरीके से कर सकते, एक्चुअली सोचते हो, तो भगवान कोई आपको कमी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन हम जब तक स्ट्रगल कर रहे हैं, हम जब तक हम अपने आप को प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमें उतना जितना नॉर्मल रीजनेबल चाहिए, जितना में फ्यूचर के भी उसमें सेविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कर सकते हो। पर आइडिया जो बोला गया कि फ्यूचर मतलब प्रेजेंट में रहना चाहिए, उसका मतलब ऐसा नहीं कि हम हमारे में फेथ ही खत्म है, कि भगवान पे हम डिपेंड ही नहीं कर रहे। जैसे जैसे हम प्योरीफाई होते रहेंगे, हमारी डिपेंडेंस भगवान पे बढ़ती रहेगी, डिपेंडेंस बढ़ती रहेगी। हमें उस क्या है कि आपने देखा होगा कि मतलब भगवान सबका ध्यान रखते हैं। अगर आप कोई चावल की बोरी आप बाहर घर के बाहर रख दो, तो चिड़िया आएगी या कोई बर्ड्स आएंगे, वो 2 दाने 4 दाने 8 दाने उठा के ले जाएंगे। और कोई ह्यूमन बीइंग देखेगा कोई नहीं इधर, तो अपने घर में बोरी ले जाएगा कि मुझे भी चाहिए, और अगले महीना 2 महीने 4 महीने मेरी फैमिली के लिए भी चलेगा। तो हमारी ये इनसिक्योरिटी है, हमारी बिल्कुल डिपेंडेंस नहीं है। जैसे जैसे हम भगवान पे मतलब प्योरीफाई होते प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी, और फिर हम कम से कम हमारी इनसिक्योरिटी होगी, और हम कम से कम इन चीजों में रखेंगे। करना फिर भी है आपको जितनी देर, जब तक 100% प्योरीफाई नहीं हो सकते, हमें इमिटेट नहीं करना। कि बहुत सारे लोग हैं जो डिवोटीज हैं, जो आज ब्राह्मण, जिसके ब्राह्मण का भक्ति हमने बात करी, ब्राह्मण का धर्म क्या है, तो वो अगर उनके पास दोपहर का खाना है तो एक्स्ट्रा बच गया या शाम के लिए, वो दे देते हैं कि भगवान अरेंज करेंगे शाम का, अपने नहीं वापस दे देते हैं बाकी का सारा। तो पर हमारा वो लेवल नहीं है, हम वो नहीं इमिटेट कर सकते। तो हमें जो रीजनेबल है, वो सेविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि जी हमें पता चले कि अगली 10 जनरेशन 20 जनरेशन के लिए हमें भरोसा ही नहीं कि आई एम द डूअर, मैं ही कर सकता हूँ, मेरा भगवान पे कोई भरोसा नहीं, वो कोई और ध्यान रखेगा, मेरे बच्चों का नहीं रखेगा, वो हमें नहीं सोचना चाहिए। और एक और क्वेश्चन था, पता नहीं मैं आई कुड आंसर दैट। Hare Krishna. Yes, yes. There is one more question. Should I post on the group? जी जी प्रभु Because प्लीज, it is already. आप मुझे बोल ही दीजिए, नहीं तो क्या। Yeah, I'm just posting. नहीं आप बता भी सकते बता हैं, अगर सकते हो टाइप या नहीं करना टाइप तो करना बता है ही जस्ट बता दीजिए। दीजिए। Yes, yes, बेटी वो टाइप कर दिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर हम गोडेस की बात करें तो क्या सिर्फ राधा रानी ही सर्वश्रेष्ठ है? आई मीन जैसे लॉर्ड कृष्णा के ही अवतार है लॉर्ड शिवा या लॉर्ड नारायण, उसी वे में क्या देवी दुर्गा या सरस्वती पार्वती सब राधा रानी के ही अलग अलग फॉर्म है क्या? आपके दो पार्ट हैं इसमें। जो पहले वाला के जो लिखा कि कृष्णा के जैसे अवतार हैं लॉर्ड शिवा और नारायण, तो उसमें बेसिकली इसमें थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है कि जो कृष्णा के जो नारायण या कृष्णा में कोई फर्क नहीं है। कृष्णा और नारायण सेम ही है, विष्णु विष्णु तत्व बोलते हैं, वो विष्णु मतलब है एक्चुअली कृष्णा इज ओरिजिनल, बाकी उनके जो नारायण या विष्णु उनमें कोई फर्क नहीं है, सब सेम है। जहां तक लॉर्ड शिवा का सवाल है, लॉर्ड शिवा भी जीव नहीं है, मतलब हमारी तरह लिविंग एंटिटी नहीं है, जैसे हम लोग लिविंग एंटिटी हैं और भगवान जैसे विष्णु तत्व हैं। तो जो लॉर्ड शिवा को अपने आप में शिव तत्व के नाम से बोला जाता है, वो कृष्णा ही है। लेकिन कृष्णा जब मटेरियल, क्योंकि कृष्णा जो है ना वो कभी भी मटेरियल उसमें टच नहीं करते, कुछ भी भौतिक क्या उसमें वर्क में या जो किसी में इंटरफियर नहीं करते, टच नहीं करते, खुद हैंडल नहीं करते। तो वो एज लॉर्ड शिवा उसको मटेरियल जो हमारी जो भौतिक संसार के इंचार्ज हैं एक तरह के, तो वो जब वो मतलब मटेरियल संसार का हैंडल करते हैं, तो वो जो कृष्णा जो कन्वर्ट होते हैं वो लॉर्ड शिवा तत्व हैं। जैसे एग्जांपल दी जाती है कि दूध है, दूध को जब आप क्या लगा देते हो, दही का, दूध से दही बनता है। दही बनता है, तो क्या लगाते हो उसमें, जामन जामन जो भी बोलते हो आप, तो वो लगाते हो तो दही बन जाता है। तो वो एक ही चीज है, दूध और दही में ज्यादा फर्क नहीं है, पर फर्क है भी। फर्क ये है कि दही है वो दूध नहीं बन सकती, दही दूध तो दही दोबारा बन सकता है। तो वो ऐसे ही जब कृष्णा वो मटेरियल एनर्जी को हैंडल करने के लिए या करने के लिए अपने आप को वो एक कंटेमिनेशन वाला जो पार्ट हैंडल करना है, क्योंकि वो है नहीं, दे आर नॉट कंटेमिनेटेड और एनीबॉडी नॉट कंटेमिनेटेड, इवन लॉर्ड शिवा, पर वे वो जब हैंडल करते हैं तो वो लॉर्ड शिवा के रूप में मानते हैं। दैट वाज वन। दूसरा आपने बोला कि जो दुर्गा देवी या जो भी वो क्या जो राधा रानी की एक्सपेंशन हैं या क्या है। यस, जो एक्चुअली उसमें हमें समझना है कि 3 तरह की एनर्जी है भगवान की। जो एक तो स्पिरिचुअल है, इंटरनल पोटेंसी बोलते हैं जो स्पिरिचुअल है। दूसरी है एक्सटर्नल जो बहरंगा, बहरंगा जो हम जीव तत्व जो सारी बाहर जो मटेरियल जब भौतिक संसार को डील करती है। और तीसरी है सॉरी मैंने दूसरी जो तीसरी तटस्थता है, जो हम जीव हैं वो तटस्थता है कि जो हमारे पास चॉइस है, हम भौतिक संसार में भी रह सकते हैं और स्पिरिचुअल में भी रह सकते हैं, अध्यात्म में भी। मतलब तो हम इनमें बीच से एक की तरफ किसी हमारा किसी में चूज करना पड़ता है, जो हम एक्टिविटी करेंगे वैसे करेंगे। तो जो ये है राधा रानी है, वो इंटरनल पोटेंसी है, जो उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है। और जो ये मान लो दुर्गा देवी हैं, वो उनकी भौतिक एनर्जी है, एनर्जी शक्ति है, भगवान की शक्ति, मटेरियल एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी है, वो मटेरियल वर्ल्ड को हैंडल करती है, जो हमारा जो भौतिक संसार की इंचार्ज है उसको है, उनकी है भगवान की भक्त वो भी। जैसे राधा रानी भी भगवान की भक्त है, शी इज द मोस्ट लाइक उनकी सबसे क्लोज है, इसलिए उनको सुपीरियर आप कह सकते हो, वो सबसे क्लोज हैं। लेकिन जो दुर्गा जी हैं वो भगवान की भक्त हैं, और वो मटेरियल एनर्जी बोलते हैं और मटेरियल एनर्जी की इंचार्ज भी हैं। और उस मतलब दैट इज द डिफरेंस ओनली। ये आपको एक छोटा सा ही मतलब हमने एक्सप्लेनेशन दिया, बट इसमें पूरा हाँ, विस्तार इसमें से आप डिटेल में समझ डिस्कस सकते हो कर आराम सकते से हैं, बट कभी तो। और एक आंचल खन्ना जी पूछ रही है कि ऐसे 18
मंथ्स के बाद और सेशन होंगे या नहीं, तो वो आप मंदिर से आप टच में आ सकते हैं, तो वो प्रभु जी भक्तों के हैं, साथ रमेश्वर गौरंग प्रभु, अमित शर्मा प्रभु, तो उनको मतलब रहेगा, प्रोग्राम रहेगा, पर कैसे उसको कनेक्ट करना है, कौन से ग्रुप बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो आपसे मतलब शेयर कर लिया जाएगा, पर होंगे प्रोग्राम कुछ ना कुछ चलते कंटिन्यूड रहते हैं। रहेंगे वो। हाँ जी। तो आपको ऐसा नहीं कि इसके बाद बंद हो जाएगा, तो उसके बाद जो भी होगा वो आपको आई थिंक लास्ट सेशन में या लास्ट 1 और 2 सेशंस के बाद बताया जाएगा, और आप कर सकते हैं। Anything else? There is one more question in the chat. The same Mataji had asked one more question. अच्छा, एक सेकंड में देखता हूँ कौन सी। मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि जितने भी भक्त हैं या चैंटिंग करते हैं वो लोग स्लीप करके या दूसरी वो शॉर्ट बेसिकली उनका क्वेश्चन ये है कि उनकी कोई फ्रेंड बोल रही थी कि जो भी लोग चैंटिंग करते हैं वो किस तरह के कपड़े, मतलब जो विमेन के लिए है कि इस तरह के पहन सकती हैं, नहीं पहन सकती, वेस्टर्न ड्रेसेस पहन सकती हैं नहीं, या मतलब उस टाइप का क्वेश्चन है। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो देखिए, भगवान के लिए ये सब चीजें कोई मैटर नहीं करती कि आप क्या पहनते हो क्या नहीं पहनते। दीज आर वेरी एक्सटर्नल थिंग्स, बट एट द सेम टाइम दे हैव देयर इम्पोर्टेंस। जैसे जो एक वैष्णव ड्रेसेस जैसे बताई भी जाती हैं, या हमें जैसे होता है ना कि एक डॉक्टर है तो डॉक्टर को बोला जाता है कि आप व्हाइट ड्रेस पहनो, और उसके लिए उसकी साइंटिफिक रीजंस भी हैं, या जो भी हैं, डॉक्टर एक अपना व्हाइट कोट पहनता है, या लॉयर एक अलग तरह का। उसी तरह भक्त हैं, उनकी भी कुछ पहचान कुछ तो होनी चाहिए ना, कि जिससे लोग उससे भी इंस्पायर होते हैं कि हाँ, ये जैसे अभी हम वृंदावन जाते हैं तो कितने सारे हम देखते हैं वहां पे जो वेस्टर्न डिवोटीज हैं, फॉरेनर्स हैं, और कैसे कैसा उनका कल्चर था, क्या था, और वो कैसे साड़ी पहन के सिर ढक के, और ये वो। बट एट द सेम टाइम दैट इज नॉट अ हिंड्रेंस। वो नहीं है कि आप सिर्फ, बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत ज्यादा इस तरह के कपड़े पहनते हैं, और बहुत ज्यादा सारे ऐसे हैं जो जिनके बच्चे हैं या वो खुद भी हैं, वो कहीं रह ही बाहर के देशों में रह रहे हैं, और उनके वातावरण के हिसाब से भी उनको कपड़े पहनने पड़ते हैं। पर कई लोग उसका पालन कर पाते हैं, कई नहीं कर पाते, बट दैट इज नॉट अ हिंड्रेंस। जो नाम लेने के लिए कोई भी कानून या कोई भी रूल नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। तो आप, नियम है पर वो अलग तरह के नियम है, ये वाले नहीं है कि हाँ आप नाम लेना तो शुरू करिए। ये सब चीजें, दीज आर नॉट गोइंग टू स्टॉप यू। सो दैट आपने इज सुना होगा श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो वहां पे जब डील कर रहे थे तो वो जितने भी लोग थे, हिप्पीज थे, सब ड्रग्स लेते थे, सब कुछ करते थे, तो इतने उनके मतलब कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी जो उनमें नहीं हो। पर जैसे उन्होंने नाम लेना शुरू करा, भगवान प्रभुपाद से उनकी एसोसिएशन शुरू हुई, उनका संग लिया, उनसे समझा, तो धीरे धीरे अपने आप वो आज गुरु बन गए। मतलब भगवान, मतलब उनके प्रभुपाद के जो शिष्य बने और इतने लेवल पे हैं कि वो आज पूरे संसार को प्रीच कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इन चक्रों की वजह से इन छोटी छोटी चीजों के लिए हमें भगवान की भक्ति में बांधा नहीं आनी चाहिए। वो हो जाएगा धीरे धीरे अगर होगा, पर वो दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो डिसेंट ड्रेस अगर कोई वेस्टर्न भी पहन रहा है, या जो हमने इसमें चैट में देखा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई किसी भी कंडीशन में है, कुछ भी कर रहा है, वो जब कर सकता है, और उसको जो चीज वो खुद इंस्पायर्ड फील करेगा तो वो अपने आप से उसको जो जो चीजें अपनानी है वो अपनाएगा, जो चीजें छोड़नी है वो छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती है कि अरे अब आप माला कर रहे हो तो आपको ये कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वो अपने आप से, आपको अपने आप गाइडेंस मिलेगी। अगर आप सीरियस हो, सिंसियर हो, तो अपने आप से वो होता जाएगा। बट या दिस इज नॉट ट्रू व्हाट यू हैव हर्ड। या और कुछ तो नहीं अभी? इज इट ओके? ठीक है, तो ठीक है, तो आपका बस इसमें लास्ट हमारी रिक्वेस्ट भी, वी हैव हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीबॉडी कि अगर आपको कुछ भी ठीक लगा, या कुछ भी आप जिस तरीके से कुछ भी कर सकते हो, चाहे बेबी स्टेप्स की बात कर रहे हैं हम, कि आप भगवान को भोग लगाना शुरू करिए। चैंटिंग 1 माला 2 माला कर सकते हो, या जो भी कर सकते हो, शुरू करो। भगवान अपने आप आपको खींच लेंगे। भगवान तो चाहते हैं हम 1 स्टेप लेंगे, वो 10 स्टेप लेंगे, 100 स्टेप लेंगे, तो वो वेट कर रहे हैं हमारी। हमें थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है, और अपने आप धीरे धीरे हमारा जैसे हार्ट, हृदय शुद्ध होता रहेगा,
हमारे वो लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा। फिर हमें ये नहीं हुआ ये मैं कैसे अभी बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं कैसे छोड़ूं, जैसे भोग हम नहीं लगा पा रहे पूरे, थोड़ा लगा पा रहे, तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। और आप प्रकृति सब चाह रहे हैं। इनिशिएटिव तो आप फर्स्ट स्टेप क्या है, हाँ। मुझे हमें नहीं मालूम फर्स्ट स्टेप है या कौन सा स्टेप है, हाँ। आप ऑलरेडी ले चुके हैं क्योंकि आप ऑलरेडी ये क्लास में हैं, अटेंड कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो आप ऑलरेडी ये ले चुके हैं, तो भगवान की कृपा आप पे ऑलरेडी है। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सॉरी ऑलरेडी हमने सोचा था जल्दी खत्म कर देंगे क्योंकि थोड़ा 15-20 मिनट रखेंगे पर 9 बजने वाले होगी। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji and Mataji, for the wonderful class. तो हम क्लास ओवर करते हैं बाय चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र प्रभुजी और माताजी के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम